Sir, good afternoon, Riken bhai. Yes, bhai, good afternoon. Welcome. Thank you, sir. My audio is clear? आवाज आवे छे? Yes, yes. Yes, it is clear. So, shall we start? Yes. So, at the outset, I welcome you all. Our today's faculty, Yash Bhai Shah, convener of the Indirect Tax Study Circle meeting, Mehul Bhai, member of Indirect Tax Study Circle, Jamil Bhai, Secretary Prakash Nandola, all the seniors present at the association office as well as joining virtually. We have more than 34 members joining virtually, as well as at the association office. We have planned this meeting in hybrid mode. Due to my some prior commitment, I could not remain present at the association office, but I am joining virtually from remote place. So I welcome you all to our today's meeting on the subject of ISD, Input Service Distributor, implementation issues and precautions. Friends, this is being mandatory from 1st April, and one need to plan for this in a very systematic manner. And to guide us, we have expert on the subject, Yash Bhai, with us. Before we move on with the proceedings of the meeting, we have few announcements. Last week, we had a cricket tournament, and it's happy to announce that more than 8 teams participated, and it was a great success. Every young member joined it and enjoyed it very much. Tomorrow, we have one seminar on bank branch audit by C. Hitesh Pomal sir. And it will be not in the hybrid mode, it will be only in the physical mode, and the venue is AMA. So I request all the members to join and have update about the bank branch audit, which is going to come in the month of April. On Friday, that is on 21st, we will be having our last and the fourth brain trust meeting on the subject of FEMA and some issues under Income Tax Act. And the faculty, the trustee for the session is Advocate C. Dinal Shah. I would also request members to join. With this, I hand over the charge to the committee to take the meeting further. Mehul, over to you. Thank you, Riken bhai. On outset, I heartily welcome our CA Yash Shah, and I request Jamil bhai to introduce the faculty. Thank you, Mehul bhai. I would like to introduce our today's faculty, CA Yash Shah. CA Yash Shah is a qualified chartered accountant of November 2017 batch and also a fellow member of ICAI. He is presently heading the Ahmedabad branch of the firm named HN & Company LLP, which was formerly known as Hiriganga and Associates LLP. HN & Company is having its offices across 19 cities in India, and he's an alumni member of HLIC as well. He has experience in working with MNC in the indirect taxation and compliance function. Yash Bhai is also a regular speaker on the topic of indirect taxes across various study circles, our institute, and likewise serving our profession. He has written various articles on different topics, ranging from finance, tax, accountancy, digital technology, and forensic audit. He is also a diploma holder of international taxation from ICAI and has also completed a certification course on forensic audit and fraud detection. He is a regular contributor to providing answers and solutions to various queries on LinkedIn and other taxation platform. I would like to request now CA Nikhil Gandhi sir to facilitate our faculty with a memento. Nikhil. I request the Yash Shah to go ahead with the session.
Sir, is the presentation visible? Yes, it is visible. Okay. So at the outset, let me thank President Sir C.A. Riken Patel giving me this opportunity and wonderful initiatives taken by CA Association in last couple of months, which I have been going through. Compliments to you, sir. At the end of your tenure, wonderful job done, sir. Thank Also, you, sir. let me thank Mehul Bhai, the convener for IDT Study Circle, and also to Jimil Bhai for the brief introduction. So let me straight away move to the today's topic that we are here to discuss, that is ISD. So ISD, as you all know, has been a discussion topic since almost now 6 years to 7 years to GST. Let me give a brief background about ISD so that we can get more clarity. It is not something of a new concept which has come up. Even during excise service tax, we had a similar concept where cost allocation based on the number of offices that we have used to happen. Only thing which was uh, different was it was all optional during this journey. Even during excise service tax 2006, 12, then going forward till GST, everything was optional. So they never mandated us to follow this. It was all optional on us to follow or not, because there is an alternative to ISD which has a similar concept but nowhere mentioned into the law. So ISD per se has a specific provisions under the law. Cross charge, on the other hand, has no mention into the GST law. The concept has different application, both whether it is ISD or it is cross charge, it has a different aspect to consider. Now, if I talk about ISD per se, 6 months back when the ISD provisions were something which were discussed in one of the GST council meetings, that is 50th GST council. So let me go through the first. This you are all know. This you all know that 6th August 2024, this notification came up that from 1st of April 2025, the ISD would be made mandatory. If you refer to B, clause B, which refers to the date when these provisions will come into effect, which is a Finance Act provision, that is section 11 and section 12. Now, this ISD mechanism had been made from 6th of August with a consented form that during this period, because 6th August and 1st April has a good amount of time, almost 7-8 months. Why there was a need of having it before, 7 months before? The concept was very clear. We need the businesses to be prepared for this, because it is a drastic change in terms of multi-operational business models where they have offices in more than one cities. So I still remember I had one session on same ISD versus cross charge in CP committee. It was in September 24, if I can recollect, which I had taken through webinar mode. People were hurt seeing me, sir, अभी तो 1st April से आ रहा है ना, अभी से क्यों, मतलब सितंबर है अभी तो, शुरुआत अभी तो कहाँ करना है, अभी तो टाइम है सर, जनवरी में देखेंगे, डिले हो जाएगा, 1st April का और आगे बढ़ जाएगा. I had that comments from other persons also, but that CP committee gave me a very good platform to bring out the issues which were never thought upon or provoked. So I have also compiled that all issues I have brought out into today's presentation, hard copy which to soft will copy? go through. Soft copy, hard copy. Hard copy. Make I'll people request everyone to kindly mute themselves so that the background voice should not. Okay. So that CP committee event, if you see that almost had more than 1,000 participants, had all the issues around IST and had a great participation because that was the talk of the town. Now, once this notification has been out, there is no doubt that this is coming up from 1st April.
We are standing on 17th of March, so almost 13 days remaining for these provisions to come into effect. Why? I will just go back to why ISD, because that is the root cause why we are discussing today this. If you know, the GST law per se is a consumption based tax. So wherever the consumption happens is where the tax is to be levied. Now there are two jurisdictions under GST, one is center, one is state. Now both of them have their share of revenue. So whether there is center, whether there is state, the share of revenue is prefixed. Now in case where there was earlier law, whether where there was VAT, service tax, the state had their own revenue models to be implemented. Under GST, if there are loss of revenue happening because of earlier laws, it was to be borne by the center. Because of the compensation cess, all the mechanism around that loss of revenue, the center was the authority which used to compensate the states. So what is the purpose of this is the revenue sharing between the states should not be happening. Why ISD? The question is why ISD? ये जरूरत क्यों है distribution? Because the word itself suggests input service distribution. मैं इसको दो भाग में bifurcate कर देता हूँ. One is input service and another is distribution. Input service word itself says हमको क्या distribute करना है? बोले input service. Distribute word itself has its own various meanings. तो अगर आप एक्ट में देखोगे तो देर आर वेरियस वर्ड्स फॉर क्रेडिट विच आर यूज्ड. 16 में देखोगे तो अवेल है, फिर 16(4) में देखोगे तो टेक है, फिर वापस डिस्ट्रीब्यूट आ रहा है, रिस्ट्रिक्शन आ रहा है. सो देर आर लॉट ऑफ वर्ड्स विच आर यूज्ड अंडर द एक्ट which has no reference as to meanings. मतलब GST Act में there is no meaning of distribute. What do you mean by distribute? Ideal meaning ले तो बोले बांटना. What is the meaning of distribute? To share within the persons. Now, the purpose of having ISD to my mind is the state should not get its wrongful share of profit, that is revenue. क्योंकि क्या होता है, सर्विस मल्टीपल लोकेशंस में है जहां पे मेरा मल्टीपल ऑपरेशंस है, बट मेरा बिल एक ही जगह पे आता है. मान के चले गुजरात में है और गुजरात में ही मेरा सर्विस प्रोवाइडर है CS करके चला गया. नाउ व्हाट इज द केस इज इट इज ऑल बेस्ड ऑन दैट CS ओनली. So the service or the supply model is bifurcated into various models. It is not only CS. क्योंकि मेरा महाराष्ट्र में भी ऑफिस है, मेरा चेन्नई में भी, तमिलनाडु में भी ऑफिस है, कर्नाटक में भी ऑफिस है. So there are various offices which I have where the supply has happened. अगर मैं GST का पर्पस देखूं तो इट इज कंजम्पशन बेस्ड. सो कंजम्पशन तो मेरा मल्टी लोकेशन हो रहा है. इट इज नॉट एट वन लोकेशन दैट इज इन गुजरात. तो महाराष्ट्र में भी हो रहा है, दैट इज हैपनिंग इन कर्नाटका, दैट इज हैपनिंग इन तमिलनाडु, गुड़गांव, सभी जगह हो रहा है. सो आइडियली तो मेरा रेवेन्यू शेयर शुड बी बिटवीन ऑल ऑफ दिस. एंड टिपिकली अगर मैं टिपिकली ISD से रिलेटेड एक्सपेंस देखूं तो मेजरली आर व्हाट, बैंकिंग रह गया, लीगल रह गया, ऑडिट रह गया, इंश्योरेंस रह गया. सो ऑल ऑफ दिस आर वेयर एट अ बिगर लेवल. If I take from a corporate angle, it has a huge impact. छोटी organization के लिए it might be very small amount which needs to be distributed. But if I talk about from a big corporate angle, which they have multiple operations, good amount of turnover, it has a huge impact. So that वो revenue loss ना होवे particular state के लिए, there comes this effective. So government क्या चाहती है, मेरे को मेरा शेयर दे दो, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंटर को. और टैक्स पेयर क्या चाहता है, ईज ऑफ डूइंग. मेरे को ज्यादा कंप्लायंस मत बोलो, मेरे को रिटर्न एक बोलो, मेरे को ऑटोमेटेड बोलो, सब वो बोलो, दैट इज ओके. बट ISD प्रिफरेबली अगर मैं देखूं फ्रॉम दिस 1st of April, इट इज गोइंग टू बी चैलेंज. जिसका मल्टी ऑपरेशनल बिजनेस, इट इज नॉट वन लोकेशन, बट जिसका मल्टी ऑपरेशन है, इट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर श्योर. क्योंकि हर चीज जो इंप्लीमेंट हुआ है GST में इनिशियल पीरियड में हिकअप्स हुआ है, क्लैरिटी नहीं है. लॉ में सर्कुलर से IMS देख लो, इट हैज कम अप थ्रू एडवाइजरी, नोवेयर देयर इन लॉ.
लोग स्टार्ट भी करते हैं। I had some clients who said, सर हम तो स्टार्ट कर रहे हैं, हमको नहीं चाहिए कल उठ के नोटिस आया कि आपने ये क्यों। एडवाइजरी से आया है आईएमएस के लिए, बिफोर इट बीइंग पार्ट ऑफ लॉ 7 सर्कुलर्स एफएक्यू सब मिला के 7-8 डॉक्यूमेंट्स आके, नो बेरिंग इन लॉ। अगर मैं लॉ में देखूं तो कुछ भी नहीं है, वो अभी लाया है चेंज। सो सेम थिंग, उसमें एक ही डिफरेंस है, आईएसडी वाज देयर फ्रॉम डे वन। सिर्फ ऑप्शनल है या मैंडेशन इज समथिंग व्हिच वाज डिस्कस्ड, इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज न्यू। लॉ में तो पहले से था, तो ये ऐसा नहीं है कि सर्कुलर से आया, इट वाज देयर फ्रॉम डे वन ऑफ जीएसटी। Section 20 was there from the beginning. But only thing is something which requires discussion is how is this going to be implemented at the national level. So हर बड़ी organization में when we are discussing about what all compliances I have to do, whether it is monthly returns, reconciliations, IMS, now new mechanism ISD, everything jot in one and go is something which increases the burden on taxpayer. It is not decreasing. So something of this sort is going to be there from 1st April. Initial 3 months I see still there being challenges to this, but we have to accept it. There is no second thought on it. ISD through this notification is now going to be the hardcore reality. Now, coming back to the coverage for this session, which I propose is something where we'll go through the brief. ISD क्या है? What is that which is coming up? Legal provisions, law में क्या लिखा है? Rules Act को लेके. Then we'll go to this analysis. That is the most important to my knowledge, because सिर्फ Act को या rules को पढ़ना नहीं है. We have to analyze what is the impact. So it is not only plain law reading, it is something which has an impact on the business. That what impact it has, we'll see. ISD क्रॉस चार्ज का थोड़ा ले लेंगे. क्रॉस चार्ज I will not discuss much because उसका circular भी बहुत आ गया है and it has clarified lot of doubts with respect to that cross charge aspect. Next is this implementation of ISD, which is I think so very core to this, क्योंकि practically कैसे work होगा वो सबको जानना है. Everybody wants to understand how it will be implemented. Issues भी मैं थोड़ा लूंगा because issues is something which requires answer, because अभी जो अपन discuss कर रहे हैं that is all basis the provisions of the law. कुछ भी आया नहीं है, 1st April से आ रहा है. भले ही practically challenges और हो सकता है, but in terms of when I refer to the provisions there now जो अभी है उसके हिसाब से देखो, there are still issues which require clarity or understanding. Compliances क्या क्या रहेंगे ब्रीफली वो भी मैं कवर कर लूंगा. ISD का रिटर्न का आपको कैसे करना है, हाउ डू यू फाइल दैट रिटर्न, I'll briefly touch upon that. Manner of distribution, this is already part of the law, मैंने सिर्फ ब्रीफ में उसको डाल दिया so that it gets easier in terms of understanding. लास्ट में मैंने जैसे बोला इम्प्लीमेंटेशन में और इश्यूज क्या क्या है जो क्लैरिटी अभी भी चाहिए, इट रिक्वायर्स सम क्लैरिटी ऑन दैट. So this is the brief which I want to cover for today's discussion. So ये road map है that I wanted to discuss ISD from day one. GST में discussion happened in 50th GST Council, which was in the year 2023. Surprisingly, मैं एजेंडा पढ़ रहा था ये मिनट्स का 50th GST Council. 50th GST Council में specifically बोल रहे हैं the lawmakers that we do not want to make it mandatory. And this is just 2 years back I am saying, 2023. Minutes पढ़ोगे तो lawmaker had very clearly said we do not want to make it mandatory. अगर उसी में मैं मिनट्स में आगे देखता हूं एजेंडा में, what they are saying is law committee has recommended to make it mandatory prospectively. मतलब ऐसा है कि they do not want to make it mandatory, पर mandatory करना भी है क्योंकि लॉ कमिटी ने बोला है. अभी क्योंकि any law change that takes place has a rational behind it, कुछ भी ऐसे ही नहीं आ जाता है. मेरे को IMS क्यों लाना पड़ा,
क्योंकि रिकंसिलिएशन इश्यूज होता था, एक सप्लायर भरता था, एक नहीं भरता था, हम लोग स्टैंड लेते थे, हमारे पास कहाँ है फैसिलिटी चेक करने के लिए, तो सप्लायर भर रहा है नहीं भर रहा है, कैसे करेंगे चेक, तो बोला चलो मैं फंक्शनलिटी आपको दे देता हूँ, हम काम करते हैं। अब आईएसडी के लिए स्पेसिफिकली लॉ तो बोल रहा था, बट मैंडेशन कहीं पे भी नहीं था, अर्लियर लॉ में भी नहीं था। सो एक्साइज सर्विस टैक्स आल्सो डिड नॉट हैव दैट मैंडेशन। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स दैट इज समथिंग which is mandation put upon for that credit distribution. So 50th GST काउंसिल से क्या निकल के आया, एक सर्कुलर आया 199. So what that circular said, उसने दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया क्रेडिट। अगर वो इंटरनली जनरेटेड है, which is generated within the organization, I can do it through cross charge. बट अगर वो थर्ड पार्टी से लिया हुआ कोई सर्विस है, then I have to mandatorily do through IST. बट वो भी कहां से, नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली, वो जब लॉ कमिटी बोलेगी कि ये डेट से आएगा तभी वो करना है। सो दैट केम अप थ्रू दिस न्यू प्रोविजंस अंडर द फाइनेंस एक्ट, जो 52nd जीएसटी काउंसिल में भी आ गया कि ये हमको मैंडेटरी करना है, लॉ कमिटी ने ऑलरेडी बोल दिया है। सो देयर वर वेरियस रिप्रेजेंटेशंस टेकन फ्रॉम वेरियस स्टेट्स। अगर मैं मिनट्स भी पढ़ता हूँ तो कर्नाटका के लॉ मेकर ने बोला कि आप आईएसडी लेके तो आओ, बट आईएसडी ऐसे लेके आओ दैट बिकम्स ईज फॉर डूइंग बिजनेस, कंप्लायंसेस बढ़ने नहीं चाहिए, इट शुड नॉट इंक्रीज माय बर्डन, दैट इज विद इन द मिनट्स इटसेल्फ। अभी मैं 52nd जीएसटी काउंसिल से दिस फाइनेंस एक्ट का मैं ट्रांजिशन देखूं, सो देयर आर चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू लॉ व्हिच हैज हैपेंड, वो चाहे सेक्शन 20 हो, 21 हो, रूल 39 हो, एवरीथिंग इज चेंज्ड to make it part of the process, that is ISD का provisions finance act के थ्रू हमने देखा वो आ रहा है। So ये मैं जो बोल रहा था, जो दो पार्ट में 50th GST काउंसिल ने बाइफरकेट कर दिया, where there is procurement from third parties। एक चीज तो बहुत क्लियर है, दिस इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट सर्विसेज। कोई भी डाउट वो नहीं है कि इनपुट होगा या कैपिटल गुड्स होगा तो ये चाहिए कि नहीं चाहिए, इट इज स्पेसिफिकली फॉर इनपुट सर्विसेज ओनली। नाउ मैंडेटरी क्या नहीं है, दैट इज समथिंग विच इज कॉमन। थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट विच इज अ सर्विस इन नेचर इज नॉट मैंडेटरी टू बी डिस्ट्रीब्यूट। अगर इंटरनली जनरेटेड है, if there are services which are internally generated, one distinct person to another distinct person अब सबको I think so that should be clear। 25 में लिखा है wherever they're having the same PAN number, having different locations will fall under this category। So ये concept branch office head office का आया through this distinct person का। तो 50th GST काउंसिल ने ये सर्कुलर का रेफरेंस दिया कि आप ये सर्कुलर इशू कर दो, जहाँ पे आप कॉमन के लिए बोल रहे हो, it is only if required, if it is from third party, that is also not mandatory, it is at option for me। if I talk about internally generated services, उसके लिए तो उसने ऑप्शन हमारे को दे ही दिया, उसमें भी उन्होंने दो में पार्ट में डिफाइन किया, दैट इज अगर फुल आईटीसी एलिजिबल है तो व्हाटएवर अमाउंट यू ट्रांसफर इज ओके, इफ देयर इज नो फुल आईटीसी तो वो सैलरी वाला पार्ट बोल दिया ऑप्शनल है, आपको सैलरी वाला करना आपकी चॉइस। अभी क्रक्स इज हियर, इफ आई से डेफिनेशन में ही सारा चीज चेंज हुआ है। सो अगर मैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का डेफिनेशन देखता हूं अंडर द जीएसटी लॉ, दैट इज 261, स्टार्ट कैसे होता है, आईएसडी मींस एन ऑफिस। सो वो स्टार्टिंग ये कैसे बोल रहा है, कोई भी मैकेनिज्म का स्टार्टिंग कैसे होता है, इट इज इफ इट इज एन ऑफिस of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices। मतलब एक ऑफिस है जो सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज के थ्रू हम लोग टैक्स इनवॉइस रिसीव करते हैं। so it does not talk about supply anywhere, क्योंकि in receiving tax invoice is different and receiving supplies is different, दोनों में डिफरेंस है। So what it talks about is supplier of goods or services or both which receives tax invoice towards the receipt of input services। So now it comes to supply, that is receipt of input services। So यहाँ से भी clarity हो रहा है, it is only with respect to input services। अभी this was something which was a pain point,
जहां पे क्लैरिटी नहीं था, इंक्लूडिंग इनवॉइसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज लायबल टू टैक्स अंडर सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9. Now 9394 we are all aware it covers reverse charge. So पहले भी ये डाउट था कि अगर रिवर्स चार्ज का कोई सर्विसेज है जो मेरा मल्टी लोकेशन में ले रहा हूं, मान के चलो एडवोकेट सर्विस मैं ले रहा हूं, सर्विस एक ही जगह पे, बिलिंग हो रहा है एक ही जगह पे, पर सर्विसेज ऑल इंडिया पे हो रहा है. व्हाट इन दैट केसेस वेदर आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट, या हर लोकेशन का इंडिविजुअली मेरे को देखना पड़ेगा, एक लोकेशन पे ले लिया, डीम्ड एट ऑल लोकेशन. नाउ दिस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन में दे हैव इंक्लूडेड वेरी स्पेसिफिकली कि आपका 9394 का भी कवर रहेगा. Now next is where or on behalf of distinct person. So अभी वो क्या बोल रहा है, मतलब it is not towards only one person. मैं ले रहा हूं अपने या अपने distinct person के behalf पे. So it is something which is taken on behalf. I am the recipient of tax invoice. I am the recipient of that input services. अभी डिस्टिंक्ट पर्सन कौन सा, तो बोल रहा है रिफर टू इन सेक्शन 25. एंड अभी सेकेंड लेग इंपॉर्टेंट, लायबल टू डिस्ट्रीब्यूट. सो वो क्या बोल रहा है, व्हाई आवर फोकस शुड बी ऑन दिस इज बिकॉज माय लायबिलिटी वो टू डिस्ट्रीब्यूट विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 20. सो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या लायबल है वो मेरे को देखना है, तो मेरे को 20 में जाना पड़ेगा. वो यहाँ पे ही बोल रहे थे इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइसेस in manner provided in section. So एक क्लैरिटी ये और हो गया कि मेरे को सबसे पहले ऑफिस होना चाहिए. It should be an office of supplier of goods or services. Second, it should be for or behalf of distinct person. And third, it should be liable to distribute. So manner, mechanism सब आएगा, but सबसे पहले क्या है ISD? What is that ISD? Is we are understanding. So these three conditions, if I am doing it, I am a person who is liable to register under ISD. रेफरेंस भी दिया है डेफिनेशन में कि आप सेक्शन 20 में जाके चेक करो कि आपको कौन सी मैनर में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लायबल है. अभी मैं सेक्शन 20 में जाता हूं तो सेक्शन 20 क्या बोल रहा है, एनी ऑफिस, यहाँ पे भी वर्ड्स आर ऑफिस, of supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of invoices including this for or on behalf of distinct person or persons. So एक रहा, दो रहा, पांच रहा, कोई भी रहा, if it is on individual one person or other persons as referred to in section 25 shall be required to be registered as ISD. So अभी पहले क्या हुआ करता था, it used to refer words may. So अपन को ऑलरेडी पता है जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत पहले से चलता रहा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मे एंड शेल. सो अभी वो मे को हटा के व्हाट दे हैव एंटर्ड इज शेल. सो now it mandates, the law has a provision which says if there is a specific provisions you are required to fulfill that, I have to do that. If I am fulfilling all of this, if I am a distinct person where this credit needs to be moved, if I am an office of supplier, if I have that RCM services, all of that, I have to compulsorily registered under section 24. 24 सबको पता है, it is a compulsory registration. So under clause 8, it specifically says I have to register as a ISD. So mandation कहाँ से है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है, लॉ में कहाँ लिखा है आपको मैंडेटरीली लेना है, तो बॉस यहाँ से 21 से आता है जहां पे बोल रहा है इट इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड. एंड वापस लिखा है शैल डिस्ट्रीब्यूट द आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइसेस. सच इनवॉइस का मतलब है जो ऊपर वाला अपन रेफरेंस ले रहे हैं टैक्स इनवॉइस का, इस पे भी स्पेसिफिकली लिखा है इट शैल डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट. सो द प्रोविजंस आर वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ व्हेन आई हैव टू रजिस्टर and what I have to distribute. एक्ट में बोल रहा हूं, अभी रूल्स में जाऊंगा तो और क्लैरिटी हो जाएगा, क्योंकि रूल्स में प्रोसीजरल सारा चीज आ गया है. अभी तक अपन डिस्कस कर रहे थे क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है और किसको करना है. नाउ वी आर ऑन टू डिस्कशन व्हाट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब
हर एक अलग अलग टैब में रूल 39 में ये सारा कंडीशंस है जो हमको फुलफिल करना है फॉर मी टू डिस्ट्रीब्यूट दैट क्रेडिट। सबसे पहला चीज क्या बोल रहा है, मेरे को कंपल्सरीली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा क्रेडिट जो भी वो पर्टिकुलर मंथ में, द क्रेडिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ मंथ। सो व्हाट्स आर, जो भी मंथ में वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ रहा है शेल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम मंथ। मतलब एक चीज से वो क्या क्लैरिटी दे रहा है, मेरा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेरा जो भी रिसिप्ट आ रहा है, जो मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लायबल कर रहा है, वो मेरे को सेम मंथ में ही करना है। एंड डिटेल्स thereof shall be furnished in form GSTR 6। सो जैसे अपने 13 भी है वैसे ही फॉर्म GSTR 6 है जो ISD को भरना है, जहां पे मेरे को डिटेल्स देना है क्या क्या मेरा रिसिप्ट हुआ, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट। एक चीज बहुत क्लियर है, देर इज नथिंग विच इज एडिशन टू दिस। सो ISD कुछ भी ऐसा चीज लेके नहीं आएगा जो कहीं से उसने रिसीव ही नहीं किया है। For distribution there should be receipt of that services, yeah, receipt of invoices. If there is no receipt, there is no liability to distribute. So मेरे पास जितना, मेरे पास 100 रुपए होगा तो मैं 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा, मेरे पास 50 आया होगा तो मैं 50 ही कर पाऊंगा। नाउ हाउ इज दैट डिपेंडेंट कि मेरा कितना रहेगा, दैट विल कम टू दैट, क्या क्या रिसीव करना है, क्या क्या अलोकेट करना है, किसको करना है, दैट इज ऑल, दैट इज। बट फर्स्ट थिंग विच इज मैंडेशन इज मेरे को सेम मंथ में करना है। सो रूल 39 स्पेसिफिकली बोल रहा है आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट विद इन द सेम मंथ। जैसे RCM के लिए कर रहे हैं, क्रेडिट भी मैं ले रहा हूँ, पे भी कर रहा हूँ, आई एम पेइंग क्रेडिट एंड इन द सेम मंथ आई कैन ऑल्सो अवेल द क्रेडिट। नाउ सेकेंड कंडीशन इज जो अपन अभी डिस्कस कर रहे थे वही है, अमाउंट ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड शेल नॉट एग्जिट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे पास अगर 50 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, सो आई एम रिसीविंग दैट 50 रुपीज, आई कैन डिस्ट्रीब्यूट ओनली 50। मेरे पास 50 का आ रहा है और मैं अपनी ही ब्रांच को 75 का इनवॉइस दे रहा हूँ, गुजरात का ब्रांच को इनवॉइसेस लीगल बैंकिंग इंश्योरेंस का सबका मिला के 500 का आ रहा है, आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग 750 जो मेरे पास है ही नहीं, आई डोंट हैव दैट बैलेंस टू डिस्ट्रीब्यूट। सो ये क्लियर कट क्या है, दैट इज ऑल बैलेंसिंग बिटवीन अवेलमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो ISD will receive and also will distribute, but it should not exceed। अगर मैं कम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, because that allocation is based on prefixed criteria। किस ब्रांच को, किस ऑफिस को कितना जाएगा, that is defined under the law। but मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, that is something which is clear। yes। यस यस सर, क्यों क्यों गवर्नमेंट को क्यों प्रॉब्लम होगा, उसको तो जो 100 रुपए मिलने थे वो तो मिल गए। ISD का काम क्या है, क्रेडिट बांटना। अभी क्रेडिट में कम बांट रहा हूं तो गवर्नमेंट को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप 100 लेके 0 बांटो ना, क्या प्रॉब्लम है। मेरे को तो उसको अवेलमेंट का 3B के सामने मेरे को कहीं भी टैक्स सेटलमेंट नहीं मिलेगा, इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर। हाँ, दैट इज समथिंग विच वी आर डिस्कसिंग। जो मेरा अवेलमेंट है ISD का, दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस टू दैट रिसिप्ट। मेरा रिसिप्ट कितना हो रहा है बेस्ड ऑन दैट आइडिया, क्योंकि अपन लोग अभी 6 पे है, 6A पे जाएंगे तो पता चलेगा कितना आ रहा है, कितना अवेल कर। जो 2A 3B वाला सीनरी है वही से रुक जाएगा। अभी डिस्ट्रीब्यूट भी कैसे करना है, दैट इज आल्सो डिफाइंड। सो नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विसेज एट्रीब्यूटेबल टू अ रिसिपिएंट ऑफ क्रेडिट। सो वर्ड क्या लिखा है, एट्रीब्यूट जितना होगा उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा टू दैट रिसिपिएंट। दैट रिसिपिएंट मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रिसिपिएंट। अभी मेरा कितना एट्रीब्यूटेबल होगा, दैट इज समथिंग विच आई हैव टू प्रूव। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई गवर्नमेंट आके बोल देगा कि भाई तुम्हारा BC लगेगा, तुम 20 से क्यों नहीं ज्यादा। आई हैव टू प्रूव थ्रू दैट डॉक्यूमेंट दैट एट्रीब्यूशन इज नॉट 20 सर, इट इज 50, इट इज 40, इट इज 30। बट प्रीफिक्स क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डाल दिया लॉ में, ये क्राइटेरिया के हिसाब से आपका एट्रीब्यूशन होना चाहिए। नाउ एट्रीब्यूटेबल टू अ रेसिपिएंट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू दैट रेसिपिएंट। अभी उस पे भी देयर आर वेरियस सिनेरियोस। अगर मैं फर्स्ट सिनेरियो लूं, credit of tax paid on input services attributable to more than one recipient।
सो ऐसा सर्विस मैं एज ISD ले रहा हूं जो एक पर्सन से ज्यादा को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए लाया। तो वो क्या बोल रहा है, शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सच रिसिपिएंट्स टू whom the input service is attributable, and such distribution shall be pro rata on the basis of turnover in a state. So एक क्राइटेरिया उसने ऑलरेडी पैरामीटर दे दिया, that it should be on the basis of turnover in that particular state, whatever the pro rata distribution comes to when it is more than one recipient. अगर वन रिसिपिएंट रहा, मैंने महाराष्ट्र लोकेशन की इंश्योरेंस का पेमेंट यहाँ से गुजरात से किया, एक ही है, तो मेरा डाउट क्लियर है, 100 रुपए का मेरा हुआ, सामने 100 रुपए का इनवॉइस मेरे को महाराष्ट्र को करना है थ्रू दैट ISD। सो उस पर कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी रेशियो नहीं चाहिए मेरे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट। बट व्हेन देयर इज मोर देन वन रिसिपिएंट, दिस इश्यू विल कम अप, कौन से रेशियो पे करें। नाउ व्हाट दे हैव क्लियरली सेड इज इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रो रेटा ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट। आगे बढ़ते हैं, और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी ऑफ सच रिसिपिएंट ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। अभी व्हाट इज दैट रेलेवेंट पीरियड, that will also come up, so that has also reference in our further slides जहाँ पे relevant period का मतलब क्या है, that will also come up, to the aggregate turnover, aggregate of the turnover of all such recipients to whom such input service is attributable and which are operational in the current year. So एक और चीज वो क्लैरिटी दे रहा है, जहां पे वो बोल रहा है अगर आपका यूनिट जहां पे आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो दैट शुड बी ऑपरेशनल। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा बंद यूनिट है जहां पे कोई काम नहीं हो रहा है, इट इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आई एम डूइंग, बिकॉज इट हैज अ कनेक्शन टू दैट एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन तभी होगा जब मेरा वहां पे एक्टिविटी होगा, अगर एक्टिविटी नहीं है तो वहां पे ITC क्यों एट्रीब्यूट हो रहा है। देयर माइट बी एक्सेप्शंस जहां पे मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, दैट इज ऑल समथिंग व्हिच does not require my business to operationalize, but still it mentions very clearly कि आपका operational होना चाहिए current year में during the said relevant period. So दो टर्म यहाँ पे important है, one is relevant period जो हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, and one is turnover। मतलब किसको turnover बोलेंगे, what is that meaning of turnover which we should adopt here, is it all sales, all exempted, all taxable, non GST, क्या क्या है under the head of turnover। ये हो गया बात अगर आप वन और मोर देन वन रेसिपिएंट के लिए कर रहे हो तो। मान के चलो द क्रेडिट इज एट्रीब्यूटेबल टू ऑल, मान के चलो मेरा 20 नंबर है GST में, ऑल हैज दैट इम्पैक्ट, मान के चलो ऑडिट, मैं सभी यूनिट्स का ऑडिट करवा, इट हैज इम्पैक्ट ऑन इट व्हिच इज एट्रीब्यूटेबल टू ऑल रेसिपिएंट, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो उसमें भी बोल रहा है इट शुड शैल बी ऑन प्रो रेटा बेसिस on the basis of turnover in the state or union territory of such recipient during the relevant period to the aggregate of turnover of all recipients and which are operational in the current year during the said relevant period. So ये चीज भी मेरे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोल रहे हैं, they are saying I have to distribute based on the turnover only, that is pro rata, whatever is my turnover I have to divide it by my total turnover of all the units, that is all turnover respect to all the units operational across the India, that is turnover of all recipients। मतलब important here is मैं recipient तो होना चाहिए, if it is not allocatable to me then I should not be part of this। So मेरे को नॉमिनेटर में क्या लेना है, डिनोमिनेटर में क्या लेना है, उसने क्लैरिटी कर दिया, बाकी फॉर्मूला उन लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ है, बोले C1 है तो दिस इज द फॉर्मूला, व्हिच आई हैव स्टिल कंसर्न्स कि ये राइट वे है या नहीं है, बिकॉज दे हैव मेंशन्ड ओनली वन पैरामीटर दैट इज टर्नओवर। बहुत सारे एक्सपेंस है दैट इज नॉट एट्रीब्यूटेबल बेस्ड ऑन टर्नओवर, may it be based on manpower, may it be based on square feet, may be based on some other criteria which is still not part of the law. Now next is where input service distributors shall in accordance with the provisions of above
separately distribute the amount of ineligible input tax credit, जो 17.5 वाला है। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है सर, मेरी कंपनी की पॉलिसी है, मैं अवेल ही नहीं कर रहा हूँ, 17.5 अवेल ही नहीं कर रहा हूँ, तो डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या बात है, जो आप बोल रहे थे अवेलमेंट मेरे को कंपल्सरी नहीं करना है। आंसर इज यस सर, 17.5 में अगर नहीं भी ले रहा हूं तो भी मेरे को अवेल तो कर ही देना है। I have to distribute. Then the recipient will have to decide whether I have to avail this credit in that recipient's local books. Then 17.5 will go out in that branch office, not in ISD. ISD I will have to bifurcate eligible, ineligible करना पड़ेगा. But ISD has to distribute. So distribution के लिए कहीं पे भी बोला नहीं है कि आप छोड़ सकते हो या आप यहाँ पे अवेल ही ना करो, और स्पेसिफिकली प्रोविजंस क्या बोल रहा है, आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करो, इनएलिजिबल क्या है and the amount of eligible input tax credit. So provision specifically mentions I have to bifurcate both eligible and ineligible. Now ये जो last वाला है, that is the most important clause as per me in this full ISD provision, जो है rule 54(1)(a). That is the major challenge which all the multi-locational businesses are facing now. अगर मैं बात करूं what the provision says, फिर उसको इंटरप्रेट करते चलो। For the distribution of credit in respect of input services attributable to one or more distinct persons. सर यहाँ पे recipient कहीं पे भी बात नहीं हुआ है, attributable to नहीं बात हुआ है, it is only with respect to distinct persons, everything. So attributable to one or more distinct persons subject to levy of tax under subsection or 4 of section 9, or registered person having the same PAN and state code as an input service distributor. So registered person कौन है, जो मेरा ही रजिस्ट्रेशन जो ISD वाले स्टेट में ही है, which is operational under same PAN, सेम पैन में ऑपरेट कर रहा है और स्टेट कोड भी सेम है, उसको इशू करना है इनवॉइस. So that registered person has to issue an invoice to transfer the credit of such common input services to the ISD. So मेरे एक ही स्टेट में दो रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, one will be regular, one will be ISD. अभी जहां पे ये 9394 वाली सर्विसेज, I will have to take that credit first into my regular registration. So मेरा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में मेरे को वो क्रेडिट लेना है और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन से मेरा ISD रजिस्ट्रेशन में क्रेडिट ट्रांसफर करना है. कैसे करना है, तो इशू इनवॉइस करना है. यहाँ पे वर्ड्स लिखा है मे इशू एन इनवॉइस. सो अभी वो भी डिस्प्यूट आएगा, इनवॉइस इशू करूं या ना करूं, क्रेडिट ट्रांसफर कर सकता हूं. ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ऑफ सच कॉमन इनपुट सर्विसेज. सो वो स्पेसिफिकली क्या बोल रहा है, कॉमन वर्ड आपको पता होगा 42 43 सब में यही चीज है जहां पे कॉमन बोल रहा है, विच इज नॉट स्पेसिफिकली अलोकेटेबल टू, मतलब जिसका स्पेसिफिकली अलोकेटेबल है पर्टिकुलर लोकेशंस को ही. मेरा 15 लोकेशन, 15 में से ये 5 को ही जाएगा ये सर्विस. अगर वो स्पेसिफिकली कवर्ड है तो ये हम यहाँ पे फॉल नहीं होऊंगा, दैट इज अंडर कॉमन में फॉल नहीं रहूंगा. अभी वो क्रेडिट ट्रांसफर कैसे करना है, वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन से ISD में जाएगा, ISD वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेगा. सो द चेन ऑफ एक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम माय नॉर्मल रजिस्ट्रेशन. नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन व्हिच कम्स टू माय माइंड कि जहां पे मेरे को कंपलसरी सिर्फ RCM वाला ये करना है या नॉर्मल भी कर सकते हैं. मान के चलो मेरे को ISD अडॉप्ट नहीं करना फुल फ्लैशली इन टर्म्स ऑफ मेरे वेंडर्स रहेंगे, सबको मैं बोलूंगा ये नया नंबर है, इस पे इशू इनवॉइस करे, मैं मेरे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन पे ही था. अभी मैं नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के थ्रू ISD को तो डाल रहा हूँ, ISD नंबर वगैरह ले लिया है, बट दैट mechanism will start from my normal registration in the same state. जिस स्टेट में ISD है वही स्टेट में मेरा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के थ्रू ये मैं क्रेडिट ट्रांसफर करूंगा. नाउ वेदर इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू RCM, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स लिखा है
subject to levy of tax under subsection 3 of section 9. So is it only with respect to RCM or all transactions? वो अभी आगे जाके डिस्कस भी करेंगे. बहुत सारे इश्यूज है, सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू कीप इट ऑन होल्ड टिल एंड ऑफ द सेशन. बहुत सारे इश्यूज है जो शायद तक अपन को आंसर मिल जाएंगे. सो ये चीज भी एक है इंपॉर्टेंट, जो आरसीएम के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन उठा था जब ये आईएसडी मैंडेटरी ला रहे थे कि आरसीएम के लिए क्या होगा. मैं सेल्फ इनवॉइस कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड पर्सन से ले रहा हूँ, जो भी ले रहा हूँ आरसीएम वाला, वेदर आई हैव टू पे टैक्स अंडर नॉर्मल या मेरे को आईएसडी में ही ऐसा मैकेनिज्म ला देंगे जहां पे मैं पे कर सकूं. क्योंकि अभी अगर मैं फॉर्म 6 देख रहा हूँ तो कहीं पे भी पेमेंट का ऑप्शन नहीं है. इट ओनली अलाउज मी टू डिस्ट्रीब्यूट. जो भी अवेलेबल है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ. आरसीएम के लिए जहां पे मेरे को ही टैक्स भरना है गवर्नमेंट को, आई डू नॉट हैव फैसिलिटी अंडर द प्रोविजंस ऑफ आईएसडी रजिस्ट्रेशन. ना वो केस में क्या कर दिया, बोले आपको आईएसडी में पे नहीं करना है, आप नॉर्मल में पे कर दो. नॉर्मल पे करके क्रेडिट ट्रांसफर करेगा आईएसडी को, आईएसडी फर्दर ट्रांसफर करेगा जो अलोकेटेबल एट्रीब्यूटेबल है उन सब. Now this will become some point of discussion to my mind once ISD is practically implemented. अभी मैं आता हूं थोड़ा मैनर के ऊपर में, जहां पे ICS हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा. अगर मेरा सेम स्टेट में ISD है, जो भी इनपुट मैं ले रहा हूं तो मेरे को सेंट्रल एंड स्टेट CS जो लगेगा वही अमाउंट में मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है. मतलब ISD is receiving C+S, I have to forthwith transfer also C and S only. अगर सेम स्टेट में वो रिसिपिएंट रहा तो. सो ISD is into गुजरात, मेरा जो रिसिपिएंट है वो भी गुजरात में, मतलब मेरा ही ब्रांच ऑफिस जो गुजरात में, जहां पे मेरे को तो वो मैं अलोकेट कर सकता हूँ C and S ओनली बिकॉज इट इज विद इन द सेम स्टेट. अगर वो रिसिपिएंट रहा अदर देन द स्टेट ऑफ ISD, मतलब गुजरात में मेरा ISD है, महाराष्ट्र में मेरा रहा रिसिपिएंट जो ब्रांच ऑफिस है, देन आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एज अ टैक्स. जो IGST मेरे को करना है. एक टेबल भी मैंने आगे बनाया है, दैट विल गिव यू मोर क्लैरिटी. ICS रिसीव क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है, दैट विल क्लियर मोर ऑफ योर डाउट्स. बट बेसिक कंसेप्ट ये है, अगर ISD एंड ब्रांच ऑफिस सेम में रहा तो C+S, अगर दोनों डिफरेंट में रहा तो IGST. दिस इज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट. अभी मान के चलो मैंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और बाद में मेरे को पता चला ये गलत हुआ है, दैट इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड. नाउ same way where invoicing, credit note, debit note, the functionality, in the same manner we'll do it here. That is through credit note I will be reversing, or through debit note I will be adding it. So reduction या addition जो भी रहेगा वो same proportion में रहेगा. So कहने का purpose is whatever is addition or deletion, I will have to do the same route, that is in credit note, debit note, and in the same proportion. मान के चलो मैंने इनवॉइस 100 रुपए का दिया था, डिस्ट्रीब्यूट इन अ पर्टिकुलर रेशियो 20-20-20-20. नाउ क्रेडिट नोट भी अगर मैं इशू कर रहा हूं, आई हैव टू बी इन सेम रेशियो इफ दैट इज रिडक्शन एंड ऑल ऑफ दैट रिसीव्स. सो मैं किसी और के लिए रिडक्शन कहीं और मैनर में अपोर्शन में नहीं कर सकता. आई हैव टू डू इट इनटू द सेम रेशियो व्हिच वाज अर्लियर डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर मान के चलो वेयर देयर इज अ रिडक्शन विच इज रिक्वायर्ड, और जहां पे गलत रिसिपिएंट को मैंने कर दिया, वही चीज सेम जो अपन ने पहले डिस्कस किया CN के थ्रू उसको करेक्ट कर सकते हैं. अभी मैं जो ये बोल रहा था, व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ टू टर्म्स विच इज रेलेवेंट पीरियड और टर्नओवर, बिकॉज ये दोनों टर्म स्पेसिफिकली मेंशन्ड है अंडर द सेक्शन एंड रूल्स. सो अपन को उसको पढ़ना पड़ेगा, रेलेवेंट पीरियड को कैसे समझे. सो फर्स्ट इज there are two things in relevant period if the recipient of credit have turnover in their state in the financial year preceding the year during which credit is distributed. So मान के चलो मैं आज 24-25 में कोई क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, तो मेरे को उसका बेसिस कौन सा लेना है टर्नओवर का, द लास्ट फिनेंशियल ईयर.
that is previous financial year का turnover would be my basis for allocation. That is where I have a operational business in last year. First point. So first point specifically covers where financial year preceding the year during which the credit is to be debited, the said financial year. So said financial year में जो credit turnover मेरा रहा, on basis of which I have to distribute this. अगर मान के चलो मेरा टर्नओवर नहीं है, मेरा नया ब्रांच है, यही साल में खुला है, मैं आज खड़ा हूँ मार्च में, मेरा सितंबर में ये ब्रांच स्टार्ट हुआ है जहाँ पे मेरे को अलोकेट करना है एक्सपेंसेस. व्हाट आई हैव टू ट्रीट हियर इज the last quarter for which details of such turnover of all recipients are available previous to the month during which the credit is to be distributed. So quarter भी कौन सा लेना है? Just preceding quarter लेना है जिस month में मेरे को distribute. So मार्च में मैं कर रहा हूँ, मेरा just preceding quarter is October. So that quarter I will have to take for this distribution. अभी इसमें भी एक दो issue है which requires consultation. अभी ये तो अपन लोग देख रहे from the angle of relevant period. What is the relevant period for which this distribution is required? Relevant period in case of turnover for preceding old branch जहाँ पे already operational है, I have to take it for that last year. If it is a new branch which is operational, last quarter का मेरे को देखना है for this allocation where all recipients are required to be part of this distribution. अभी आता हूं मैं टर्म टर्नओवर के ऊपर. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म टर्नओवर, क्योंकि अपन ने देखा ये पूरा सिनेरियो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टर्नओवर के ऊपर. टर्नओवर का मेरा जो भी रेशियो रहेगा डिफरेंट सेट ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए, उस हिसाब से मेरा ये चलेगा. नाउ टर्नओवर किसको बोलेंगे? एनी रजिस्टर्ड पर्सन एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एज वेल एज गुड्स नॉट टैक्सेबल अंडर दिस एक्ट. सो टर्नओवर में रजिस्टर्ड पर्सन सबसे पहली कंडीशन, engaged in supply of taxable या not taxable anything, both of which I will include, means the value of turnover reduced by the amount of any duty or tax levied under entry 84 and 90A of list 1 of 7 schedule to the constitution and entries 51 and 54 of the list 2. So सबसे पहले बोल रहा है टर्नओवर इंक्लूड होगा, सब्जेक्ट टू दैट टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल कोई भी रहा. रिडक्शन मेरे को करना है अमाउंट ऑफ एनी ड्यूटी और टैक्सेस. अभी ये एंट्री 84 क्या है, एंट्री 92A क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है. आप सभी को पता होगा देयर इज ब्रॉडली 3 सेट्स ऑफ लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. वन इज यूनियन लिस्ट, सेकंड इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कॉन्करेंट. सो व्हाट डज यूनियन लिस्ट मीन इज where the center has the power to levy the tax. सेकेंड स्टेट लिस्ट है जहां पे स्टेट के पास स्पेसिफिक पावर है टैक्स लगाने का, ड्यूटी लगाने का, जो भी. एंड थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पे कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट एंड सेंटर बोथ हैव पावर टू लेवी टैक्स और एनी. अभी एंट्री 84 एंड 92A क्या है? सो दिस इज द बेयर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. 84 लिस्ट 1 का क्या बोल रहा है? ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टोबैको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एक्सेप्ट. सो एक्साइज ड्यूटी on tobacco and other goods manufactured or produced in India except this two, alcoholic liquor and opium, Indian hemp and narcotic drugs. ये दोनों को एक्सक्लूड करते हुए बट इंक्लूड करता हुआ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस जो अल्कोहल को इंक्लूड करता हुआ. सो इट बेसिकली सेज एक्साइज को आपको रिड्यूस करना है. यू डू नॉट हैव टू इंक्लूड एक्साइज इनटू दिस टर्नओवर का डेफिनेशन. सेकंड थिंग इज 92A जो बोल रहा है टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर वेयर सच सेल और परचेज टेक्स प्लेस इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स. सो स्पेसिफिकली गुड्स के ऊपर में जो भी सेल परचेज पर टैक्स लगता है विदाउट न्यूज़पेपर टेकिंग इनटू प्लेस, ये टैक्स जो भी लग रहा है वो उसको रिड्यूस करना है. सो टर्नओवर अगर मैं देखूं it specifically includes whatever is my sale value which I am giving out, that is the turnover for me. Subject to this taxes, अगर मेरा turnover का part है तो I will have to specifically reduce it for arriving at the turnover calculation. This is not that very important, but मेरे को वो cover करना था so that clarity evolves around turnover.
अभी जो अपन बात कर रहे थे क्रॉस चार्ज में क्या होगा, बिकॉज ये तो अपन सब बात कर दिया आईएसडी के ऊपर. दिस इज समथिंग फ्रॉम अदर प्रोक्योरमेंट्स, थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट्स. क्या आईएसडी आने के बाद whether there would be a concept of cross charge or not? My thoughts are yes, it would be there, because the circular very categorically said जहां पे मेरा internally generated service है वहां पे तो आज भी मैं वो क्रॉस चार्ज का मैकेनिज्म यूज कर ही सकता हूँ. So it is not taking away my right to use that cross charge mechanism. ISD is with a separate mechanism where they want to bring out for a purpose attached to it. So अगर मेरा ISD के specified conditions फॉलो होता है where it is from procurements of third parties, तभी ये सारा चीज आएगा. So 199 would still be there. क्रॉस चार्ज के लिए आज भी मेरे को वो अप्लाई करना ही है. अभी आईजीएस के लिए जो अपन बोल रहे हैं इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज, दैट सर्कुलर इज वे ऑलरेडी देयर एंड 2023 का सर्कुलर है विच इज अ बेनिफिशियल सर्कुलर. शेड्यूल 1 सभी बोल रहा है वेयर देयर इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पार्टीज. सो दिस इज वेयर इट इज जनरेटिंग. ये इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज कहाँ से है, तो बोल रहे यहाँ से है, शेड्यूल 1 से है. क्या बोल रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस or between distinct persons as specified in section 25 when made in course or furtherance of business. जहां पे मैंडेटरीली मेरे को जीएसटी चार्ज करने के लिए वो बोल रहे हैं. अभी सेकेंड इज वेयर शेड्यूल 3 इज वेयर ट्रांजैक्शंस आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी. क्या बोल रहे हैं, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस treated neither as supply of goods nor as services include services by an employee to an employer in course of furtherance of business. सो अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, इट इज आउटसाइड द नेट ऑफ जीएसटी. शेड्यूल 3 मेक्स इट वेरी क्लियर. और अपन को ऑलरेडी पता है ये डिस्प्यूट कोलंबिया एशिया वाला, जहाँ पे सैलरी कॉस्ट को हम लोग बाइफरकेट करके वेदर वी कैन ट्रीट इट एज अ पार्ट ऑफ सर्विस. बाद में कमिंस इंडिया वाला भी डिसीजन आया था कनाडा. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस ऑन दिस, बट आई थिंक सो सर्कुलर हैज पुट एन एंड टू दिस वेयर दे आर वेरी कैटेगरिकली जहां पे मेरे को सैलरी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है क्रॉस चार्ज के थ्रू और नॉट इज माय चॉइस. सो इट डज नॉट मैंडेट. सर्कुलर 199 specifically covers के I can transfer that salary cost if I want to allocate to that. So it gives me an option for cross charging because this salary cost and everything is which is internally. मैं कोई थर्ड पार्टी से लेके नहीं आ रहा. Employees are my own. शेड्यूल 3 makes it very clearly कि वो बाहर जाएगा, जीएसटी के एम्बिट में नहीं रहेगा. डिसीजन दो मे बी हैव रिवर्स. कोलंबिया एशिया हैड अदर व्यू कि वो दोनों के बीच में सर्विस मानेंगे और उसको बाहर लेके जाएगा. बट दिस इज समथिंग व्हिच इज आफ्टर सर्कुलर हैज बिकम वेरी क्लियर एज पर माय. अभी आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट अपन पॉइंट डिस्कस करने जा रहे थे, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन. कैसे करें, how would I implement ISD in my clients where I have this set of expenses, multi-location operation, because it is now very clearly mandatory. So mandatory nature उसका बहुत clear है, it is mandatory and I have to compulsorily fulfill that distribution mechanism. So section 20 में लिखा है. So सबसे पहला step है, you have to identify the expenses which have to be routed through this ISD. मेरे को अपने बुक्स में जाके, मेरे को अपने ट्रायल बैलेंस में जाके दोनों एट अ कंपनी लेवल एंड ऑल्सो एट अ ब्रांच लेवल, अगर मैं दोनों इंडिविजुअली मेंटेन कर रहा हूँ, अलग अलग बुक्स मेंटेन कर रहा हूँ, आई हैव टू गो डाउन टू ईच ऑफ द एक्सपेंसेस. आई हैव टू आइडेंटिफाई विच एक्सपेंसेस हैज अ क्रॉस लोकेशन इफेक्ट. जैसे गुजरात में मैं कुछ ले रहा हूँ एक्सपेंस, बट इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन महाराष्ट्र, it has an impact on Madhya Pradesh. I will have to go through that expenses and I have to prepare the list. So second is where I have to list out that common expenditure which has an impact. Next is where I have to divide the above expenditure into third party vendor services and other. ये सबसे बड़ा मेरे को क्वेश्चन आता है, सर मैं काम ही ऐसा करता हूँ, आई विल ओनली हैव इट ऑल लोकेशन वाइज. मेरा महाराष्ट्र में तो वहां पे इंडिविजुअल इनवॉइस ले लेता हूँ, गुजरात में वहां पे इंडिविजुअल ले लेता हूँ. मेरे को एक लोकेशन पे इनवॉइसिंग ही नहीं चाहिए, आईएसडी का वीजा हमारी खत्म.
So that is going to be where there is a common expenditure at one location. ये problem आएगा तभी जब there is a common expenditure. अगर मैं route कर सकता हूँ different locations, that would avoid these ads. Very. अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे को आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा कि what are that common expenses which I have to distribute. Expense list में जाके देखना पड़ेगा. थर्ड पार्टी इनवॉइस आइडेंटिफाई, जो मैंने बोला ऑलरेडी, पॉसिबिलिटी ऑफ वेदर दोज एक्सपेंसेस कैन बी सेपरेटली इनवॉइस टू द ब्रांच इटसेल्फ. अगर मैं ब्रांच पे ला सकता हूँ देन इट इज वेल एंड गुड. तो मेरे को हेड ऑफिस और हेड ऑफिस से ब्रांच का प्रॉब्लम ही चला जाए. आफ्टर वॉट एवर इज रिमेनिंग, ये सब मैंने फॉर्मेलिटी कर दी, बुक्स गो थ्रू कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया, लोकेटेबल था वो कर दिया. बाद में जो बचा which is not separable, which is not identifiable at a corporate level, I have to bifurcate into two. That is, first step is that is distributable. So what will arrive at, वो हमको distribute करना है. डिस्ट्रीब्यूट करने में भी दो ऑप्शन है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, एलिजिबल है इनएलिजिबल. तो मेरे को बाइफरकेट करना पड़ेगा इनवॉइस लेवल पे, एक्सपेंस लेवल पे, कि ये एलिजिबल है या नहीं है. उस हिसाब से मेरे को पर्टिकुलर हेड में डालना पड़ेगा जीएसटी रिटर्न. दैट इज फॉर्म 6 में एलिजिबल का अलग है, इनएलिजिबल का अलग है. So that is something which I have to, this is the first step, identification and allocation to expenses. Now I will arrive at the distribution. Step 2 is where I identify locations to which such expenses are attributable to. So मैंने आगे बता दिया वेयर कॉमन एक्सपेंसेस, हम आगे जो जो अलग हो सकता था वो हमने कर दिया. बट अभी ऐसा है जो कॉमन है, जो नहीं हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट अलग से, तो वो आइडेंटिफाई करूं. वन लोकेशन तो दूसरा लोकेशन मेरा क्या हो सकता है, वेदर इट इज प्रोक्योरमेंट, थर्ड पार्टी, इंटरनली, वॉट एवर इज द केस. जो मैंने फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई किया उसको एक लोकेशन पे जाएगा या मल्टी लोकेशन पे जाएगा. सो इफ द आंसर इज वन लोकेशन, मैं अदर लोकेशन को इनवॉइस करूं आईएसडी के थ्रू, एंड जो जो लोकेशन पे नहीं जाना चाहिए वहां पे मैं उसको अलोकेट ना करूं, एट्रीब्यूट ना करूं. मोर देन वन लोकेशन है तो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, आईएसडी नंबर के ऊपर में इनवॉइस कंपलसरी होना चाहिए. तो मेरे को वेंडर लेवल पे जाके वेंडर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, दिस इनवॉइस इज नॉट पर्टेन वन लोकेशन, गिव इट मी अंडर आईएसडी रजिस्ट्रेशन. आईएसडी के थ्रू आई विल रूट. नेक्स्ट स्टेप इज वेंडर्स आइडेंटिफाई करो, कम्युनिकेट करो, नया आईएसडी रजिस्ट्रेशन जो हमने लिया है उसके थ्रू आइडेंटिफाई करो, कम्युनिकेट करो. आईएसडी रजिस्ट्रेशन को इंप्लीमेंट करके आईएसडी इनवॉइसेस इशू करना चालू कर दो. सिस्टम सॉफ्टवेयर वेरी इंपॉर्टेंट सर. जहां पे बड़ी कॉर्पोरेट्स है उनके लिए दिस वुड बी अ वेरी टीडियस टास्क, क्योंकि आप सबको पता होगा वेंडर मास्टर डिटेल्स एक बार फिट इन हो जाता है, फिर चेंज करना इज अ बिग टास्क इन बिग कॉर्पोरेट्स. दिस नंबर मे नॉट बी लेस देन 50,000 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन. तो दिस इटसेल्फ इज अ फुल प्रोसेस. मैं जब लास्ट टाइम सेशन ले रहा था आई हैड टोल्ड, अगर आपने आज सितंबर में स्टार्ट नहीं किया तो आईएसडी इज गोइंग टू बी अ हैवॉक ऑन द मंथ ऑफ अप्रैल. बिकॉज जहां पे चालू हो गया होगा बट आपके पास वो वेंडर लिस्ट ही नहीं है जहां पे मेरे को आईएसडी में लेना है. आईएसडी के नंबर पे ही मेरा जब एट्रीब्यूटेबल होगा तभी मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा. इट इज नॉट समथिंग आई विल डिस्ट्रीब्यूट एंड देन आई विल टेक. आई हैव टू टेक फर्स्ट अंडर द आईएसडी. मेरे 6A में आएगा तब मैं जाके उसको 6 में डिस्ट्रीब्यूट. लास्ट स्टेप इज मेरे को स्टाफ को तो ट्रेन करना ही पड़ेगा, कि अगर मैं उसको ट्रेन नहीं करूंगा तो वो वापस वही गलती करेगा, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन पे क्रेडिट लेगा, एंड स्टिल इट विल बी अंडर दैट प्रोविजंस, जहाँ पे पैनल प्रोविजंस भी आगे देखेंगे. अगर मैं आईएसडी नहीं फुलफिल कर रहा हूँ तो व्हाट आर द जीएसटी लॉ पैनल प्रोविजंस व्हिच विल कम इनटू इफेक्ट. दिस इज ऑल इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. सो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मेरे को क्या क्या पॉइंट्स या चेक पॉइंट्स ध्यान में रखना है, दिस इज ऑल दैट वी हैव टू डू. ये जो मैं चार्ट बोल रहा था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिंपल है बट अगर आप समझ में आ गया देन इट विल बी वेरी इजी. सबसे पहला मेरा वेंडर से इनवॉइस आएगा. वेंडर से इनवॉइस आया आईजीएसटी में. सबसे पहले दोनों में तो बाइफरकेट करना है, वन इज एलिजिबल, इनएलिजिबल.
एलिजिबल में आईजीएसटी इनवॉइस आया, अगर आईएसडी स्टेट में है, इनपुट क्लेम किसको करना है, आईजीएसटी, जो उसको मिला वही वो क्लेम करेगा। सो आईजी मतलब आईएसडी विल नॉट क्लेम सी प्लस एस, क्योंकि आईजीएसटी उसको रिसीव हुआ है तो मेरे को भी आईजीएसटी ही लेना पड़ेगा एज एन आईएसडी। अभी आईएसडी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन देयर मे बी टू ऑप्शंस, या तो आईएसडी के स्टेट में है या तो आईएसडी के स्टेट में नहीं है। अगर आईएसडी के सेम स्टेट में है तो आईजीएसटी जाएगा, अगर वो अदर देन आईएसडी स्टेट है तो भी आईजीएसटी जाएगा, बिकॉज इट इज अ मल्टी क्रॉस लोकेशनल इंटर स्टेट। अभी डिस्प्यूट आएगा यहाँ पे, सी मेरे को वेंडर ने चार्ज किया, आईएसडी नंबर पे सी मेरे को मिला, मेरे को सेम स्टेट में रहा तो मैं सी करूंगा, अगर डिफरेंट स्टेट में रहा तो मेरे को आई करना है। यहाँ पे मेरा गुजरात का लोकेशन है, मेरा वेंडर भी गुजरात का है, ऑडिट भी यहाँ से कर रहा हूँ, मेरा आईएसडी में भी गुजरात का आएगा। अगर गुजरात में ही दूसरा ब्रांच रहा जहाँ पे एलोकेटेबल है तो मैं सी करूंगा, अगर महाराष्ट्र में रहा तो मैं आईजीएसटी करूंगा। सेम चीज एसजीएसटी के लिए, एसजीएसटी रहा तो एसजीएसटी में आईएसडी में लूंगा, आईएसडी के थ्रू सेम स्टेट में रहा तो भी एसजीएसटी लूंगा, अगर नहीं रहा तो मेरे को आईजीएसटी लेना है, एज सिंपल एज दैट। सो दैट विल give me clarity on what I have to transfer. This is the distribution mechanism that we need. ये अपन ऑलरेडी जो डिस्कस कर दिया है उसका ही मैंने ब्रीफ टेबुलर फॉर्म में डाल दिया, सो दैट इट बिकम्स इजी। थर्ड पार्टी इनवॉइसेस, अब तो बहुत क्लियरिटी हो गया, थर्ड पार्टी इनवॉइसेस रहा वो ही आईएसडी के थ्रू जाएगा, अगर इंटरनली रहा तो आईएसडी के थ्रू नहीं जाएगा। थर्ड पार्टी के लिए अभी एफसीएम रहा, जो ट्रांजैक्शंस आर अंडर फॉरवर्ड चार्ज। पहले का प्रोविजन क्या था, मैं अपनी चॉइस पे क्रॉस चार्ज कर सकता था, टर्नओवर के ऊपर पे या जो भी वैल्यू के ऊपर पे। अभी मेरे को कंपोनेंट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ब्रांचेस वेयर बाय आईएसडी वुड एक्ट एज अ पास थ्रू गेटवे। सो आईएसडी मेरे को मैंडेटरीली फॉलो करना है और मेरे को एज अ पास थ्रू एंटिटी उसको क्रेडिट रूट करना है फॉर एफसीएम। आरसीएम के लिए जैसे मैंने बोला अभी डिस्कस किया, पहले क्या हुआ करता था, एचओ लोकेशन जहां पे मेरा क्रेडिट पे करना बनता था वहां पे मैं उसको पे कर देता था और सामने क्रॉस चार्ज कर देता था, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था क्रॉस चार्ज करना है या आईएसडी करना, तो मैं क्रॉस चार्ज करता था और उस लोकेशन को दे देता जहां पे वो आरसीएम लगता था। अभी this is something which I was discussing, the process which is given in 54(1)(a) would be required to be followed, whereby the regular registration in the state in which ISD is taken has to pay the amount and the transfer of the same amount is required to the ISD. So ISD को वो ट्रांसफर होगा और ISD के थ्रू उसको फर्दर ट्रांसफर करना है। इनएलिजिबल आईटीसी भी अपन ने डिस्कस किया, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं अवेल कर रहा हूं तो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना है, आई हैव टू अवेल एंड आई हैव टू फर्दर डिस्ट्रीब्यूट। अभी इनएलिजिबल आईटीसी में आरसीएम रहा तो सेम चीज जो 54(1)(a) में डाला, मेरे को अवेल करना है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में, आईएसडी को ट्रांसफर करना है एंड दैट रिसिपिएंट विल टेक अ कॉल कि ये इनएलिजिबल आईटीसी है, जो आरसीएम है मेरे को लेना या नहीं लेना। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पैनल प्रोविजंस भी देखेंगे ये रिसिपिएंट वाला, सो इट मेक्स द पेनल्टी एप्लीकेबल ऑन रिसिपिएंट। आईएसडी के ऊपर कोई भी पैनल प्रोविजंस नहीं है, सो आईएसडी ने कुछ गलती कर दिया, लिया ही नहीं, ट्रांसफर ही नहीं किया, तो कोई भी पैनल प्रोविजन, इट ऑल टॉक्स अबाउट रिसिपिएंट। सो दैट ब्रांच ऑफिस जिसको हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं वुड बी द पर्सन वुड बी लायबल टू पेनल्टी के हिसाब से। डॉक्यूमेंटेशन तो वो सेम ही रहेगा, जो सेक्शन 31 में इनवॉइस बोला है वो इनवॉइस करना है अपन को। इनवॉइस में क्या क्या रहेगा, नेम, जीएसटी नंबर, आईएसडी नंबर के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं, आईएसडी का स्टेट कौन सा है, वो सब चीज सेम रहेगा जो 31। आईजीएस के लिए जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, क्रॉस चार्ज वाला है वो अभी भी वैलिड है, मैं पहले भी करता था, गोइंग फॉरवर्ड भी चालू रखूंगा आईजीएस के लिए। दैट विल नॉट इफेक्ट माय वे ऑफ टेकिंग द क्रेडिट विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज। एक चीज इसमें हो सकता है जहां पे आप क्रॉस चार्ज कर रहे हो, यू एंटर इनटू द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, जिसके ब्रांचेस के थ्रू, मतलब अपनी ही ब्रांच कोई और लोकेशन है जहां पे आप कर रहे हो,
you enter into an agreement so that tomorrow it may not happen कि ये बाहर का सर्विस है और this is something which is procured from third party. ये yes sir. Yes sir. Yes. Right. ITC and then raise invoice to ISD. Yes. So let us assume that there is total ITC of 100 rupees. Now when I'm paying 100 and taking ITC of 100, it is now nil in terms of tax. But now when I'm charging 100 rupees to ISD, I mean, for distribution purpose. Only invoicing, sir. And only invoicing. Only invoicing. But then I will be paying 105 level. Now that ISD will give me back my share also. That's it. Yeah. Because I am in actual. You are attributable. आप attributable है. That expense is attributable to. It will give you share that. 17 rupees. मेरा ISD के रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर मैं जा रहा हूं, so 100 is going to ISD and it is between distinct persons, sir. It is not between unrelated parties. So load तो मेरा overall same ही रहने वाला है, sir. That is your internal transaction, sir. It is all distribution. मैं 100 रुपए दे रहा हूं, मेरे को 70 वापस मिल रहे हैं, 30 भी मिल रहे हैं सर, बट मेरे दूसरे लोकेशन को मिल रहे हैं बिकॉज इट इज एट्रीब्यूटेबल टू दैट. और वो दूसरा लोकेशन अगर मैं बुक सेपरेटली मेंटेन कर रहा हूँ, मेरे को 30 भी देगा ना. मेरा बैंगलोर का ब्रांच है जहाँ पे 30 रुपीज का RCM एट्रीब्यूटेबल है, तो दैट 30 रुपीज विल कम फ्रॉम बैंगलोर टू माय गुजरात ब्रांच. So 70 I received through ISD, 30 I received through that Bangalore branch. So 100 is something which I will receive at the end because this is all internal transaction. It is not impact on the overall transaction. ये लिस्ट है जो एग्जॉस्टिव नहीं बोलूंगा बट मेजरली आई हैव ट्राइड टू कवर जो सर्विसेज इसके अंदर में फॉल हो सकता है और जिसका हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर में इंपैक्ट दिखना चाहिए. जहां पे मल्टी लोकेशन है, दीज आर ऑल द एक्सपेंसेस हेड, जहां पे जाके मेरे को लेजर स्क्रूटिनी करना चाहिए कि ये मल्टी लोकेशन है या एक लोकेशन के लिए स्पेसिफिक. इंटरनल ऑडिट हो गया, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया, मैंडेटरी लग जाएगा बिकॉज इट इज एक्सटर्नल सर्विस, इट इज नॉट इंटरनल जनरेटेड. लीगल सर्विस रहा, कंसल्टेंसी फीस रहा, दैट इज ऑल्सो एक्सटर्नल, something which I have taken from outside. ISD would be mandatory cross charge. RCM is also something which director is giving to the company, wherein it is an invoice which will be generated. I'll have to follow the ISD mechanism. Cross charge मैं नहीं कर पाऊंगा. Payroll services, HR, admin जो अपन बोलते हैं salary driven रहा, HR की salary, admin की salary, all that still there is an option. Because it is an internally generated, I am only paying to my employee as in form of salary. I can opt in for ISD or cross charge as per my choice. Bank charges is definitely external. Bank will issue me an invoice. I will have to get that credit in terms of ISD. Capital goods, हमने already discuss कर दिया. ISD is something which is only for input services. भले ही मेरा सर्वर रहा which is a capital goods for me which can be used by others, मतलब other offices also are using it, but अगर उसका cost transfer करना रहा then it should be through cross charge, not through ISD. Advertisement, marketing, business promotion expenses जो भी external रहा, internal भी अगर रहा, then there is an option cross charge करूं. But if it is an external जहाँ पे मैं invoicing ले रहा हूँ, my brand image will be to overall, will be not to specific location. So when there is some specific set of allocation के मैं कर्नाटक में करूंगा तो कर्नाटक को ही benefit होगा, then only there is an option of specific allocation, otherwise it should be specifically through ISD. Ineligible हमने already discuss कर दिया, I will not go into detail. Head office rent also is something which has an dispute, salary की जैसा है, where I can say my decisions are taken at head office, so the allocation should also happen to all the offices.
It is not only to my head office. It is something which is required to be taken out through that allocation matrix only. This is some specific expense list. इसमें this is an illustrative. इसके बाहर भी हो सकता है. इंश्योरेंस जैसे बोला इसमें कवर. Cloud server, so there is no specific location to which it is attached. So generally हम लोग क्लाउड सर्वर का जो लेते हैं, दैट इज बेसिकली अ सर्विस ड्रिवन इंडस्ट्री टू माय माइंड, बिकॉज वो कहीं पे भी ऐसा लोकेशन नहीं है जहाँ पे स्टेशन है. तो मैं उसको इनपुट सर्विस के अंदर में अगर लेता हूँ, if it falls under the definition of input service, then I think so I should go by ISD route only, that is external invoicing. जैसे ये AWS हो गया, Amazon वाला सपोर्ट कर रहा है, that is all cloud based softwares. That particularly because I pay rental to them. आई एम नॉट इनटू दैट कैपिटल गुड्स का प्रोक्योरमेंट में कर रहा हूँ या उसका सर्वर ही मैंने ले लिया. आई पे अ फिक्स्ड रेंटल टू देम, सो इट इज फॉर्म ऑफ अ सर्विस वी कैन से. Yes. Covered here, sir. Covered, sir. Ineligible ITC RCM. That I have already covered. मेरे को same process follow करना है 54(1)A वाला. There is no difference whether it is RCM or CM. अभी यहाँ तक था. That was all with respect to ISD. Now let me come to the issues. क्योंकि ये सारा चीज अभी भी disputable है. This is something not exhaustive. I have tried to cover everything, but इसके बाहर भी रहेगा. But ये issues ऐसा है जो अभी भी open है. This is not something which is closed. ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेडली आ रहा है कि ISD एक ही स्टेट में लेना है. मेरा अगर मल्टीपल लोकेशंस है जहाँ पे मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स है, can I go into multiple ISD registration? I don't think so. There is any bar in taking multiple registration. More and more ISD registrations to take the compliance. So if that thought process is in mind, you can definitely take multiple registration, but subject to that period that all other things will follow in terms of compliance, scrutiny, investigation, everything. So yes. Yes. And 24 also does not specifically restrict me to only one office. So it requires me to have office registration ISD under 24 compulsory. जैसे we have SEZ. So SEZ में बोल रहा है सेम स्टेट में भी रहा तो भी मेरे को लेना है. Even though all the premises everything यहाँ पे है, same चीज यहाँ पे है, then also I have to take separate registration. Similarly, for ISD, if there is something which requires different multiple registration, I will have to take. But to my mind, this is something which will not happen practically. Routed through one ISD because that is something which head office driven activities are there. So it is head office cannot be multiple. It has to be one. Where I am allocating that cost. 16 to AA वाला जो अपन रिकंसिलिएशन बोल रहे हैं, ये इशू वापस आने वाला है. जो 2A 2B वाला अपन इशू ले रहे हैं 6A वर्सेस 6A में मेरा 100 रुपए दिख रहा है. वेदर एक्चुअल में मेरा 120 हुआ है. So whether I can take 120 and distribute 120 will still be an open question क्योंकि ये 6A वाला चीज is something which will be going to be there. 2A 2B वाला ही चीज. ISD registration to be at HO, a major manufacturing unit or plant, regional office can also be registered under ISD. We already have a decision on this because कोई specified location पे वो नहीं बोल रहा है कहाँ पे आपका ISD होना चाहिए, because इसका jurisdiction भी fix होगा. ISD फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, रिटर्न्स भर रहा है नहीं भर रहा है, वो भी तो किसी को देखना पड़ेगा. अगर नहीं कर रहा है तो क्या लायबिलिटी रहेगा. दैट इज ऑल समथिंग which will be disputable, but could be at locations which is other than HO also. ISD implications and IGS internally generated services applicability in case of centralized or decentralized billing, ये हमने already discuss कर दिया. Is better to have decentralized billing क्योंकि वहां पे मेरा liability under ISD will be zero. IGS के अंदर में मेरे पास ऑप्शन है क्रॉस चार्ज इनवॉइस करना या ना करना, बट वेदर इट वुड चेंज बेस्ड ऑन बिलिंग इज द क्वेश्चन. मैं बिलिंग करता हूं उसके ऊपर से चेंज हो जाएगा. इट विल बी ड्रिवन थ्रू सप्लाई क्योंकि मेरा सप्लाई तो मल्टी लोकेशन आज भी हो रहा है. जस्ट बिकॉज मेरा इनवॉइस सेपरेट हो गया, डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, तो शुड नॉट आई ऑप्ट फॉर ISD
or should I opt for cross charge would be a still disputable issue. Common bill received or related in a group company having distinct persons, whether bill received in ISD registration or bill is received through GST, and ये चीज जो होने वाला अपन डिस्कस कर रहे थे तब मैंने कवर किया था, whether it is only with respect to FCM, मैं normally भी ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या? I will go through the option of that regular registration जहाँ पे मैं जाके इसको बिल ले रहा हूँ, रिसिप्ट कर रहा हूँ, and through that ISD route I am routing, because still then I am fulfilling the conditions of ISD. So ISD बोलता है डिस्ट्रीब्यूट करो, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, but through that route of regular registration, because उसपे impact मेरा vendor wise बहुत, still today also I am receiving under the, whether there would be change in valuation of IGS cross charge where the third party element is already distributed to ISD, where it is a shared service center versus pure third party bill. So distinction वापिस वही चीज पे आ रहा है जहाँ पे expense का nature ऐसा है where I can allocate through IGS also and something which has included the cost of shared service. जैसे मैं एक example लेता हूँ, HR का services रहता है, generally they are part of the organization, but some organizations have that or outsourcing activity. जैसे मेरा HNA का मैं example देता हूँ, we have HR function outsourced, so we have team of HR sitting in our office, but we paying the bill to that outsource agency, not to the employees. Now whether that is internally generated, whether it will be covered employee is something which is still disputable. Yeah, so still issue will arise क्योंकि ये it is more of a interpretational, actual nature of service क्या है वो define करना at individual level is very difficult. Distribution to be basis the turnover as provided in law, even if the cost is apportioned using different cost driver. ये जो मैं बोल रहा था सिर्फ turnover बोला है, so I have to mandatorily go through the turnover only. I cannot opt for other cost drivers. मान के चलो मैन पावर है, इंश्योरेंस जैसा चीज है, वो टर्नओवर के साथ कोई लेना देना नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन द एम्प्लॉई. अहमदाबाद में मेरे 50 एम्प्लॉई है, बैंगलोर में 100 है, तो मैं उसके हिसाब से ट्रांसफर करूंगा. टर्नओवर के साथ क्या लेना देना है, टर्नओवर मेरा हाईएस्ट भी रहा, बैंगलोर से भी ज्यादा रहा, वहां कहाँ उसको लेना देना, बट स्टिल इट इज समथिंग विच कुड बी डिस्प्यूटेबल. Distribution towards exempt supply, interest on loan and other incomes, where rule 42 43 implication will come, whether I have to reverse that inputs with respect to exempt supplies across all the location. Yes, if HO पे ही मैं reverse 42 43 कर दूंगा तो चलेगा. Ineligible credits हमने already discuss कर दिया, रूल ने ही बोल दिया, it has to be separately distributed. Now next will come is e-invoicing, क्योंकि ये ISD को भी invoice issue करना है, whether that invoice has to be e-invoice. FAQ बोल रहा है नहीं, e-invoice नहीं होना है, normal invoice भी चलेगा, even though you are fulfilling that conditions of turnover of e-invoice का criteria. जो मैं बोल रहा था ISD का रजिस्ट्रेशन का ज्यूरिसडिक्शन क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा, सेम स्टेट में रहा तो वेदर इट वुड बी सेम और इट कैन बी डिफरेंट आल्सो, ज्यूरिसडिक्शन जो फॉलो करना है. ISD अगर कुछ क्राइटेरिया या फंक्शनलिटी नहीं फॉलो कर रहा है तो उसके लिए प्रॉपर ऑफिसर कौन रहेगा, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन चल सकता है क्या, दैट इज अ मेजर क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे टैक्स का इम्पैक्ट नहीं है, इट इज ओनली अ प्रोसीजरल थिंग. तो अगर मैं प्रोसीजरल थिंग फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, even though that being the case, whether the proper officer can issue me a show cause notice, litigate, investigate everything, the scrutiny can come. ये 42 43 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया. नेक्स्ट इज 180 डेज रिवर्सल. मान के चलो मैंने एक्सटर्नल पार्टी से इनवॉइस लिया, आईएसडी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, पर मैंने पेमेंट ही नहीं किया, so 60 restricts me to avail the ITC. Now that reversal has to happen through ISD, क्योंकि ISD में कहीं पे भी reversal का नहीं है, I have to go through credit note, debit note, through that 180 days वाला thing fulfillment. dispute create करेगा कि recipient के हाथ में भी, क्योंकि पेमेंट को करता था ISD वाले मेजर रजिस्ट्रेशन पे, उस पे नहीं किया तो क्या recipient can also be penalized for taking this credit which is not 180 days paid.
How to incorporate a nexus of input service with the concerned GST number in course of accounting itself. ये nexus जो बिठाने का बात है in terms of cost driver where the input service is with that GST number, because location wise तो different cost drivers रहेगा. How I establish that nexus, because documentation would be the key. मेरे हिसाब से आप जितना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंटेन करोगे फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन, it will be good for clients. Mechanism of distribution of credits to SEZ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. मान के चलो मेरा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी है, आईएसडी रजिस्ट्रेशन भी सेम स्टेट में है, एंड सेम स्टेट में SEZ रजिस्ट्रेशन भी है, जहां पे आईएसडी के थ्रू ये रूट होता है मेरा इनपुट सर्विसेज. Now whether that zero rated, आपको पता है सेक्शन 16 बोलता है it has to be zero rated. Now whether ISD can opt this exemption of zero rated, क्योंकि ISD per se is not SEZ, मैं ISD के थ्रू SEZ को सप्लाई कर रहा हूँ, whether this zero rated benefit will available to ISD or not is still a dispute. Late fee ये returns वगैरह का है जो that is something which is already part of the act. नए प्रोविजंस आए उससे पहले अग्रीमेंट्स में चेंज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट वुड बी द ड्राइवर फॉर थ्रू विच दिस क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. जैसे मैंने बोला डॉक्यूमेंटेशन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दीज आर ऑल द इश्यूज है सर. ये 4th स्लाइड है ऑन इश्यूज. सो प्रैक्टिकली तो जी आया ही नहीं है, प्रैक्टिकली आएगा तो इससे और रहेगा या यही रहेगा, इज समथिंग क्वेश्चन. Yes, sir. पर वो कहीं स्पेसिफिकली नहीं आ रहा है सर. दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोविजंस. जैसे इनएलिजिबल एलिजिबल कैसा है, दे वेरी क्लियरली सेड 17.5 ब्लॉक रहा तो भी डिस्ट्रीब्यूट करो. 40 to 43 अगर मेरा रिवर्सल रहा ऑन द बेसिस ऑफ दैट लोकल, मान के चलो मेरा एक लोकेशन पे सिर्फ टैक्सेबल है, एक लोकेशन पे एग्जम्प्टेड प्लस टैक्सेबल है, क्योंकि इट इज रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज ना. मेरे को वो करना कैसे है, इट इज बेस्ड ऑन ईच रजिस्ट्रेशन वाइज. ये जीएसटी नंबर में मैं क्या सेट ऑफ एक्टिविटीज कर रहा हूँ मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर जीएसटी नंबर अंडर द सेम पैन. देयर इज नो मैकेनिज्म एज ऑफ नाउ. सो रूल 40 to 43 बेसिकली प्रैक्टिकली अगर देखूं तो दैट इज बेस्ड ऑन डिसिप्लिन. Documentation without proper documentation and under regular registration भी challenge on. हाँ ये this is something. मैं आईएसडी के थ्रू मैंने क्रेडिट तो रूट कर दिया, बाद में पता चला मैंने 16 का तो कंडीशन फुलफिल ही नहीं किया, इनवॉइस नहीं मिला है, गुड्स नहीं मिला है, तो रिसिपेंट के हाथ में क्या डिसअलाउ कर सकते हैं आईटीसी, या तो इनवॉइस. मान के चलो आईएसडी इनवॉइस इशू करना था, वो इनवॉइस ही इशू नहीं किया आईएसडी, ऐसे ही क्रेडिट ले ली. So whether the recipient can be held liable for the mistakes of ISD is something which can still be challenged. और कल उठ के इसके ऊपर नोटिस आ सकता है जहाँ पे बोलेगा कि नहीं आपका ISD ने ये फुलफिल नहीं किया तो आप ये क्रेडिट ही अलाउ नहीं करेंगे, जैसे अभी कर रहे हैं 2A3B में. इनपुट आपके क्रेडिट वो सप्लायर ने नहीं डाला तो आपका गलती है, मैं नहीं जानू, आप देखो वो ISD. There might be disputes between each of the locations working in the same. अभी ये जो चीज नेक्स्ट है न्यू ब्रांच ऑफिस वाला जो मैंने बोला, मेरा लास्ट ईयर भी टर्नओवर नहीं है, करंट में भी टर्नओवर नहीं है, क्वार्टर में भी नहीं है, यही मंथ चालू हुआ और यही मंथ में क्रेडिट एट्रीब्यूट करना है. कैसे करूंगा, क्योंकि ये क्वार्टरली बेसिस पे बोल रहा है, ये मंथ पे करना है तो लास्ट क्वार्टर लो, पर लास्ट क्वार्टर में था ही नहीं, यही मंथ में तो मेरा शुरू हुआ है, एंड दैट इज वेयर द माय एट्रीब्यूशन स्टार्ट. सो स्टिल दिस इज समथिंग व्हिच yes. Yes, that could be a scenario 100%. So in terms of if I'm looking at from here March angle, it could be December, January, Feb, because that could also be a quarter. Quarter is a summation of 3 months, that is all. It is not saying any particular financial year का ये quarter ये format. हाँ
दिस इज द मार्च मंथ में ही शुरू किया, मार्च मंथ में ही मेरे को करना है। अलोकेशन तो है ना, एट्रीब्यूशन तो है, देयर इज एट्रीब्यूशन देयर, सो मैं कैसे करूं? आई डू नॉट हैव एनी। क्यों जीरो लूंगा? पर एट्रीब्यूशन तो है ना, देयर इज एन एट्रीब्यूशन। मेरा कॉस्ट अलोकेशन हो रहा है तो मैं टर्नओवर के बेसिस पे क्यों जाऊं? हाँ, जीरो आएगा तो कहाँ एट्रीब्यूशन जाएगा? एक्चुअल में हो रहा है, सप्लाई इज हैपनिंग, बट एट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। I don't think so. It is on based on all recipients, attribution to all recipients. It does not talk about turnover to all recipients. It is, I think so, till my knowledge, it is attribution to all recipients. Turnover होना जरूरी नहीं है, because turnover is a criteria. Huh? We'll see in that. अच्छा, नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, जहां पे मेरा पीओएस का ब्लॉकेज है, मान के चलो गुजरात में मेरा नहीं है, पीओएस का ब्लॉकेज है, तो कैन आई थ्रू दिस आईएसडी रूट इवन फॉर एफसीएम ट्रांजैक्शन, कैन आई रूट थ्रू आईएसडी? मैं सीएस में ले लूंगा, आई में ट्रांसफर कर दूंगा। लोकली मेरा आईएसडी में आईएसडी रजिस्ट्रेशन रहा, सीएस में मैंने होटल की सर्विस ले ली, अभी मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, आई विल ट्रांसफर इट थ्रू आईएसडी। आईजीएसटी क्रेडिट दे रहा है, आप सी करो, एस करो, अवेल करो, आई में ट्रांसफर कर दो। इट इज टोटल ट्रांसफर, ब्लैक का व्हाइट हो रहा है। कैन इट बी, बिकॉज ये स्पेसिफिकली जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन बोल रहा है, दैट इज ओनली विथ एफसीएम आरसीएम ट्रांजैक्शन। whether we can take it for FCM also is still to my mind, because the words used are subject to, so it does not restrict me apart from 9394. अगर आप वर्ड पढ़ोगे 54(1)A में, तो इट रिफर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3(4) ऑफ सेक्शन 9। ये भी अपन ने डिस्कस किया था थोड़ा ब्रीफ में, कि मेरे को फर्स्ट कंडीशन था, अगर आपको याद होगा, मेरे को सेम मंथ में ही करना है क्या? अगर मैंने सेम मंथ में नहीं किया, मान के चलो मेरा गलती हो गया, मैं नेक्स्ट मंथ में कर देता हूँ। आज भी मेरे को 1(3)B में सब में अलाउ तो कर रहा है, इनवॉइसेस रिपोर्ट करना भी अलाउ कर रहा है, हाँ, इंटरेस्ट कॉस्ट बर्डन रहेगा, बट वेदर, क्योंकि प्रोविजंस बोल रहा है आपको सेम मंथ ही करना है, आपने नेक्स्ट मंथ क्यों किया, आपको मैं पेनल्टी डाल रहा हूँ, इंटरेस्ट डाल रहा हूँ, दैट कुड बी डिस्प्यूटेबल इन फ्यूचर, बिकॉज प्रोविजंस बोल रहा है। यस, पर सर तो मैं अगर ये ट्रांजैक्शन, एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन छोड़ देता हूँ, मेरा नॉर्मल बिजनेस में भी ऐसा है कि मैं सेम मंथ में अवेल भी करूं, डिस्ट्रीब्यूट भी करूं, पॉसिबल ना भी हो, दैट कैन बी पॉसिबिलिटी ना, क्योंकि मेरा क्वांटम इतना है। और मेरा गलती भी हो गया, मान के चलो मेरा गलती भी हो गया, मेरे 500 लाइन आइटम थे, मैंने 490 तो ले लिया बॉस, मेरे 10 के लिए आप कैसे अलग से बोल रहे हो यार पेनल्टी लगेगा, आप पेनल्टी 122 में जाके बोलोगे इतना लगेगा, वो लगेगा, सिर्फ 10 ट्रांजेक्शन, दैट इज अ जेन्युइन मिस्टेक। तो मैंने भी यहाँ पे लिखा है सब्सटेंटिव प्रोविजंस आर फॉलोड। अगर मैंने नेक्स्ट मंथ नहीं किया है डिस्ट्रीब्यूट, तो आप बोलो सब्सिक्वेंट मंथ्स में टिल द एनुअल रिटर्न नहीं किया तो बोलो। हाँ, नहीं लेना चाहिए, लेकिन नहीं ले रहे तो नेक्स्ट मंथ में वो फाइल करते तो अपडेट नहीं होता है वो 6 हाँ, नहीं होगा, तो ये महीने अगर नहीं लिया तो नेक्स्ट टाइम में लिया तो देयर में भी एन नोटिस के 6 से ज्यादा लिया 100% आएगा सर। ये तो सबसे बड़ा इशू है, मेरा फर्स्ट स्लाइड का इशू है ये, तो पूरा कंप्लायंस बर्डन। अपन को ऐसा लगता है 6 और 6 से 2 ही तो चीज है, क्या करना है? 100%, देयर इज नो डाउट। ये मंथली आईएसडी का अपना रिटर्न कैसे फ्लो होगा, वो मैंने सिर्फ ब्रीफ आउट कर दिया है। ये सारा कंप्लायंस पर्सपेक्टिव, दिस इज नॉट विद एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू लॉ। ऑटो पॉपुलेट होगा, ऑटो पॉपुलेशन के ऊपर से आप जीएसटीआर 1 के जैसे फाइल करोगे, 12 तक आ जाएगा। 6A के ऊपर से आप रिकनसाइल करो, आपने जो जो इनवॉइसेस बुक किए हैं अपने बुक्स में, दोनों मैच हो रहा है, अगर मैच नहीं हो रहा है तो आप रिकनसिलिएशन मैच करके ट्राई करो मैच करना। देन मिसमैच के अलावा जो भी एंट्री है दैट यू
show it in your computation list, reconcile invoice list, in the divide the invoices into eligible, ineligible. ये सारा procedural thing है which will be there. compute ITC distribution, ये वही चीज हो गया. आपको रिटर्न फाइल करना है, कैसे करना है आप बताओ. ISD invoice raise करो, because based on that ISD invoice the credit would be transferred. Step 5 में GSTR 6 में जो रिपोर्ट करना है, यू रिपोर्टेड ISD एलिजिबल इनएलिजिबल के ऊपर से दैट रिसिपिएंट पर्सन शुड सी. उसका 100 रुपये आ रहा है तो मेरा 60-40 हुआ है कि नहीं हुआ है, 60-50 तो नहीं हो गया. एलिजिबल इनएलिजिबल करने के चक्कर में मेरा ज्यादा तो नहीं हो गया. रिकंसाइल दैट, कंप्यूट करो और फाइल करो. एंड रिकंसिलिएशन इज द की. ये गवर्नमेंट एक ही चीज जानती है, दैट इज रिकंसिलिएशन. कभी भी चाहो नंबर्स बता दो, नंबर्स में गलती निकाल दो, वो नोटिस दे दो. एक ही चीज हुआ है जो मैं बहुत बार बोलता हूँ. डीजीजीए का एक रिपोर्ट है, आफ्टर 7 years of GST still disputes on GST interpretation is only 5%. ये डीजीजीआई का रिपोर्ट है, दिस इज नॉट माय रिपोर्ट. डीजीजीआई का रिपोर्ट से 95% आर बेस्ड ऑन नंबर्स. 2A3B नहीं हो रहा है, 1 3B9 नहीं हो रहा है. अरे सर 1 का पर्पस अलग है, 3B का पर्पस अलग है, 9 का कहां से मैच होगा? आप मैच करना क्यों चाहते हो? Why are you trying to match all three of them? So all of this will sum up to more and more disputes, more and more creation of litigation. Action plan लास्ट में मैं एक ले लेता हूँ, क्या करना चाहिए, व्हाट इज द एक्शन सेट्स. जीएल क्रिएशन कर देना चाहिए आईएसडी रजिस्ट्रेशन के लिए, आउटपुट इनपुट आईएसडी, नेट आईएसडी रजिस्ट्रेशन एवरी मंथ. क्योंकि अपन ने बोला 100 आया तो 100 ही जाना चाहिए. वो रहने के लिए आउटपुट इनपुट का मैच करके आपको ट्रांसफर करना है, देख लेना है नलीफाई हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है. नया रजिस्ट्रेशन तो लेना ही है, कम तो बढ़ाना ही है, कोई डाउट ही नहीं है. आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन टू कॉमन वेंडर्स. सो वेंडर्स को हमको इंटीमेट करना है. दिस इज समथिंग विच इज न्यू विच वी अडॉप्टेड. अपने मास्टर में अपडेट कर लो, नया इनवॉइसेस यही नंबर पे आना चाहिए. वो 1 पे पुराने नंबर पे जा रहा है, 2A में आ रहा है पुराने रेगुलर रजिस्ट्रेशन में. मेरे को क्रेडिट लेना है, आईएसडी में ट्रांसफर करना है, आईएसडी में नहीं हो रहा है. मंथली रिटर्न्स मेरे को फाइल करना है. 6 आरसीएम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, पे करना है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ चैलेंज जहां पे मेरा रेगुलर एंड आईएसडी दोनों मेरे को संभाल के चलना है. बिकॉज पेमेंट करना है रेगुलर के थ्रू, पर एक्चुअल अवेलमेंट करना है आईएसडी में, क्योंकि वो तो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, रेगुलर में तो अवेल नहीं कर रहा हूँ. आई एम अवेलिंग बट फॉर ट्रांसफरिंग. सो ऐसा ना हो मैं ऊपर पे कर दूं 3B में, नीचे क्रेडिट अवेल करके छोड़ दूं, डिस्ट्रीब्यूशन ही ना हो. दैट शुड नॉट हैपन. But in all my invoices, I'm writing subject to Ahmedabad jurisdiction. So Right. that guy has to come to Ahmedabad to fight with me. So lawyer has actually fought case in Ahmedabad. And the customer was of Assam. Lawyer was also of Assam. And because he is under, no requirement to have GST number. So Gujarat will be considered as recipient of service in that case. I don't think so, sir. Attribution should be based on the materiality of the transaction. So if my transaction मेरा सिर्फ invoice पे लिख देना it is subject to jurisdiction of Ahmedabad would not change the nature of my transaction. Yeah, 100%, sir. कोई doubt ही नहीं. Yes. Yes. 100%, मैडम, नो डाउट अबाउट इट. मेरा छोटा चीज भी रहेगा तो भी मेरे को लेना, क्योंकि बिकॉज इट इज ड्रिवन नॉट ओनली बेस्ड ऑन माय इनवॉइसिंग पैटर्न. क्योंकि वरना तो आईएसडी रहता ही नहीं. आईएसडी क्यों है? व्हेन देयर इज एट्रीब्यूशन टू अदर. आप जब भी आपने बोल दिया ये कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी ऑडिट बेनिफिट्स अदर लोकेशंस, मतलब
मैडम मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, व्हाट दे विल डू, दे विल सेपरेटली इनवॉइस ईच द लोकेशन, क्या फर्क पड़ेगा, वो आईजीएसटी चार्ज करेगा ना, मैं आईजीएसटी क्रेडिट ले लूंगा, व्हाई आई विल गो इनटू दिस आईएसडी का प्रॉब्लमेटिक। एंड अगर मैं दूसरा भी लूं, whoever has this multi location business are even capable of doing all of this, वरना वो इतना बड़े रहता ही नहीं। सो ये सारा ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन डिफर्स है, कहाँ पे क्या रहेगा, इट इज ऑल बेस्ड ऑन फैक्ट्स ऑफ द केस, बट वी शुड ट्राई एंड अवॉइड के ये डिस्प्यूट में ना जाए। सो जितना डॉक्यूमेंटेशन, जितना प्रोसेसेस, एसओपीज हम लोग रखेंगे, इट विल बी बेटर फॉर द अदर पर्सन टू सेटिस्फाई द डिपार्टमेंट। ट्रेनिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आईटी में आई थिंक सो देयर इज लॉट दैट कैन बी डन फॉर आईएसडी, बिकॉज IMS, ISD, ये सब चीज आई बिलीव कैन बी सॉल्व थ्रू टेक्नोलॉजी। ये ह्यूज इम्पैक्ट अगर आप देखने जाओ फॉर बिग कॉर्पोरेट्स, अगर मेरे को इम्प्लीमेंट भी करना है थ्रू टेक्नोलॉजी, इट विल बी वेरी सिंपल देन अ मैन्युअल थिंग। मान के चलो मैं सॉफ्टवेयर में ही ऐसा फंक्शनलिटी डाल देता हूँ, अगर मेरा ये वेंडर जहाँ पे एक्सपेंस कोड ये है, ईमेल शुड बी शूटेड टू देम एवरी 2 days, ये मेरा नया आईएसडी नंबर है, ये मेरा नया इनवॉइस, इस पे दो, इस पे दो। आई थिंक सो इट कैन बी ऑटोमेटेड लाइक, but it is the need of the hour, जो majority of the organizations are not using it, but if they start using it, it can solve lot of problems. But of that is something which we are end here, so अपन को कुछ उस पे ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है, ऑलरेडी आ चुका है, 13 दिन बाकी है आईएसडी को। ये मैं बात कर रहा था जो लाइव पैनल प्रोविजंस इंप्लीमेंट करेगा, जो लॉन्ग इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करेगा एज अ आईएसडी, द पैनल प्रोविजंस 73 74 में ही फॉल होगा, सो मेरा नोटिस भी आएगा, दैट विल बी आल्सो अंडर दैट। बट किस पे लगेगा, इट इज मोर और लेस इन टर्म्स ऑफ, आप सेकेंड लाइन पढ़ो, रिकवर्ड फ्रॉम द रिसिपिएंट। सो recovery provisions under 73 74 is with respect to recipient, not with respect to ISD. Panel provisions are also there which will be covering through this provisions. I think so I will end it here. I hope I was able to justify this topic of ISD, because that is the hot ongoing topic of ISD. Any more questions? I'd like to thank C Association for this opportunity. Any questions or anything that we want to take it up, we can definitely start taking. Yeah. Yeah, first we'll go with that offline. Yes. There is transport. There is 5-6 different states. Yes. And he has opted for RCM. Yes. There is one transport. Okay. He has opted for RCM. Okay. Will not collect and pay. Hmm. Like ITC. Hmm. And he has taken number in 5 different states. Hmm. So as per ISC registration requirement, he has to get ISC. Yes. But he may not have any ITC to test. Right. Or let's say if there is ITC, let's say there is auditor's fees. There. They will distribute under any analysis. Yes, yes, 100%. 100%. We do not have to check whether they would be availing, not availing. That is not the criteria which we will have to go through. It is, if you are fulfilling that conditions which are required under 20, I'll have to definitely opt for registration, even though I do not have any transaction. Let me be very clear. It does not talk about जैसे अपन registration के लिए कैसा है, आप 20 लाख का turnover करो, 40 लाख का करो. This is not the case. This is based on some set of transaction which you perform, not based on quantification. Yeah, I'll take up the chat questions now. We have one question, whether we need to take ISD for ACZ and non-ACZ units. Sir, I have already covered during the session. There are multiple units. It is not based on ACZ or non-ACZ. It is based on distribution requirements. So if there is multi-location impact attribution to multiple locations, I will have to take a separate registration for ISD. Sir, is it also compulsory to be taken for education or health care service provider who are exempt from GST liability? हमने already discuss कर दिया था.
जहां पे भी आपका क्रेडिट एलिजिबल है एंड अलोकेटेबल है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन टैक्सेबल एग्जाम वॉट एवर इट मे बी द केस, जहां पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 42 43 implication, everything will come from the angle of that distribution. लेना क्रेडिट लेना ना लेना, इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन दैट रिसिपिएंट, नॉट बेस्ड ऑन आईएसडी का रजिस्ट्रेशन। आईएसडी का काम एक ही है, टेक एंड डिस्ट्रीब्यूट। Eligible, not eligible, whether it falls under exemption category or not is for calculation of turnover, whether inter-branch transaction should be considered or not. Definitely yes sir, turnover is something which is required to be seen, हमने already देखा taxable, non-taxable, everything except duties and taxes. So duties, taxes के अलावा जो भी turnover रहेगा will be forming part of it. हर्षित दीपक शाह पूछ रहे हैं सर, इफ वी हैव 3 verticals in company and we are taking advertisement of only 1 vertical, can it be considered as common service? सर मैंने बोला था कॉमन तभी होगा जब आप allocate नहीं कर पाओगे। if you are able to allocate to a particular region, you will have to justify through documents. जैसे मैंने बोला सर, this is something very important, through documents only you can prove that this is allocatable or not. एडवर्टाइजमेंट आप कन्नड़ में करोगे तो फिर गुजरात के लोगों के लिए वो नहीं बना है, वो क्लियर हो जाएगा। बट अगर आप इंग्लिश में ऐड दे रहे हो जहाँ पे गुजराती पीपल आर ऑल्सो स्टेशन देयर, तो वहां पे अलोकेशन ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ HNA गुड़गांव को ही होगा या HNA दिस पर्सन को ही होगा, इट विल बी एप्लीकेबल टू एवरी लोकेशन, देयर इज नो डाउट। यूपी जी पूछ रहे हैं सर, आर आईएसडी प्रोविजंस एप्लीकेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन हु आर ओनली सप्लाइंग सर्विसेज? इज यस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट आईटीसी एज द प्रोविजन सेज, आईटीसी इज डिस्ट्रीब्यूटेड on the basis of supply of goods. Sir, मैंने ये क्लियरली बोला, सप्लाई ऑफ सर्विसेज यू आर लुकिंग फ्रॉम द आउटवर्ड एंगल, मैं बोल रहा हूँ सर इनवर्ड एंगल से। इनवर्ड एंगल में जब आपका इनपुट सर्विसेज रहेगा वही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपका आउटवर्ड जो भी रहे, गुड्स का रहे या सर्विसेज का रहे, दैट इज नॉट मैटर ऑफ कंसर्न। जब आप इनपुट सर्विसेज दे रहे हो, व्हेन यू आर अवेलिंग इनपुट सर्विसेज, then only this distribution will come into picture. What about gift SEZ, sir? The provisions remain the same. गिफ्ट में स्पेसिफिकली बोलूंगा बिकॉज गिफ्ट इज अ स्पेशलाइज्ड प्रोविजंस अंडर द आईएफएससी प्रोविजंस। सो आईएफएससी का अलग से अथॉरिटी है, पर गिफ्ट में दोनों है सर, आईएफएससी भी है और एसईजेड भी है। सो आई हैव टू फुलफिल बोथ ऑफ दिस बिकॉज हमारा एक क्लाइंट का अभी एक शिप लीजिंग बिजनेस में है, सो वी हैड दैट अपॉर्चुनिटी टू डू दैट। सो इट इज बेस्ड ऑन एसईजेड एंड आईएफएससी बोथ प्रोविजंस, बट एसईजेड का जो प्रोविजन, Yes, Vivek. in case of Yes, RCM, officer. okay, in case of RCM liability, the ITC can be claimed only through ISD, even if it is ascertained at the time of payment of RCM that the ITC is of the branch declaring the RCM. Sir, yes, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तभी जब इट इज मल्टी लोकेशन। अगर आप बोल रहे हो मेरा रेगुलर रजिस्ट्रेशन पे ही RCM है तो मेरे को ISD के थ्रू नहीं जाना है सर, फिर तो हर ट्रांजैक्शन आईएसडी में चला जाएगा। दैट इज नॉट द केस सर। अगर मेरा स्पेसिफिक रहेगा एक लोकेशन के लिए, आई कैन पे द टैक्स अंडर रेगुलर एंड अवेल द आईटीसी इन दैट लोकेशन, आई डू नॉट हैव टू रूट इट थ्रू दैट। ये आएगा क्वेश्चन तभी जब आरसीएम वाला ट्रांजैक्शन भी बहुत सारी लोकेशन पे इंपैक्ट कर रहा है। कांतिलाल सर का क्वेश्चन है वेदर एवरी HUN ब्रांच हैज टू टेक आईएसडी रजिस्ट्रेशन। सर ये मैंने आंसर कर दिया है, सेक्शन 20 में अगर वो फॉल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का रिक्वायरमेंट है, एट्रीब्यूशन टू मोर देन वन लोकेशन वेयर द कंडीशंस मेंशन्ड इन सेक्शन 2 सब क्लॉज 61 रेड विथ सेक्शन 20 आर फुलफिल्ड। मेरी स्लाइड भी मैं सी एसोसिएशन को दे दूंगा, सो आप रिफर कर सकते हो। सेक्शन 2 सब क्लॉज 61 3 कंडीशन एंड सेक्शन 20 अगर दोनों में मेरा फुलफिल हो रहा है तो मेरे को आईएसडी लेना है। ई इनवॉइसिंग का मैंने ऑलरेडी बता दिया है सर, नो रिक्वायरमेंट ऑफ ई इनवॉइस अंडर द आईएसडी प्रोविजंस। FAQ गवर्नमेंट का ऑलरेडी 2020 में आ चुका है जो स्पेसिफिकली बोल रहा है आपको ई इनवॉइस, आईएसडी का इनवॉइस इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है because it is just distribution, it has no financial impact whatsoever to the government revenue. Okay sir, that's all. Then I will hand it over to the Mehul bhai and team
for further proceedings. I thank every participant for staying back till the end. Thank you, Irfan, for sparing your valuable time for enlightening us on the topic of IFT. And I thank to participants also for active participation. Thanks all. Thank you.